Okay. Very good afternoon to all of you. We are going to start with a new meeting for the for training purpose and understanding the G Suite, that is a compilation of the softwares according to the procedure. The meeting is being recorded for the future purpose and for the referral use of the teachers who cannot join this meeting or who wants to recapitulate the things after some time. The recording will be shared to you all in a form of a in a form of a YouTube link. According to the standard protocols, I request all of you to kindly switch off your mics and your cameras. To turn off your mic, the shortcut is Control D, and to turn off your camera, the shortcut is Control E. Now, now I am presenting my screen to all of you for a better understanding. As you as you can see that my screen is being shared with you all. क्या आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? क्या आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? Yes. 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 Okay. Thank you. Thank you. Now what you need to do is you need to click नीतू डागर. मैम एक बारी आप अपनी चैट मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है. हो रहा है. आप एक काम कीजिए, आपको मेरा नाम जहाँ पे दिख रहा है पीपल की लिस्ट में, वहां पे मेरे नाम के ऊपर जाकर के क्लिक कीजिए और आपको एक यहाँ पे पिन टू स्क्रीन मिलेगा, आपको वो क्लिक करना है. ओके सर. नाउ विजिबल. हाँ, नाउ विजिबल. आपको मेरे नाम, हाँ, आपको मेरे नाम के ऊपर जाना है एंड यू नीड टू पिन माई स्क्रीन. इफ यू पिन माई स्क्रीन टू योर स्क्रीन, देन मेरे स्क्रीन पे जो भी काम हो रहा है वो आपको अपने स्क्रीन पे नजर आएगा. Am I clear? आप सब लोगों ने मेरी स्क्रीन को अपनी स्क्रीन पे पिन किया? Yes. Okay. Okay. Now we will start, and we will start from the very basics. How to log in. देखिए, हर तरह के लोग हमें नजर में आएंगे. जरूरी नहीं है कि सबको आता हो. So, for starting with a mail, first, I'm receiving some messages कि मेल नहीं खुल रहा.
Now for that, what we need to do is, we need to open a browser. This is a browser. And we need to type www.google.co.in. When we just type it, it will ask you for the Gmail. Click on Gmail. Use another account. Use your email ID provided to you from the KVS RO Delhi. This is a dummy ID that I am using right now. The domain of the KVS RO ID is this: KVS RO DELHI.in. Then by default password is password, but many of you have changed your password. Kindly enter the changed password. Now this is the first interface that you will receive after entering the KVS RO mail ID and password. The difference is, like in normal mail IDs, you will not find G Suite written over here. Why it is written? Because to segregate it, and the G Suite activities are controlled by the domain person, that is kvsrodelhi.in. Now I am closing it and I am going to my own main ID. This is my mail ID. This is teacher's mail ID that will be opened. Why it is called G Suite ID? Because it is a compilation of these several softwares which are interrelated and interconnected to each other and kept at a one place, so that the person who is using it can easily use these software. Need to click on it. These are the 9 dots which shows the softwares which are interrelated and interconnected. Now ये सारे सॉफ्टवेयर्स आप जनरल मेल आईडीज में भी नजर आएंगे, बट वहाँ पे ये सब इंटरकनेक्टेड और इंटररिलेटेड नहीं होते हैं. हमें आपस में इनको इंटरकनेक्ट और इंटररिलेट करना होता है. बट इन जी सूट these are interconnected and interrelated by default. तो हम आज के सेशन में जो मेन सॉफ्टवेयर्स हम यहाँ देखेंगे, जिनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और उनका एजुकेशनल एप्लीकेशन देखेंगे, वो है हमारा जीमेल तो है ही, साथ में ड्राइव, क्लासरूम, डॉक्स, मीट एंड कैलेंडर. दोबारा रिपीट करते हैं: जीमेल, ड्राइव, क्लासरूम, डॉक, कैलेंडर, मीट. सबसे पहले क्लासरूम. क्लिक ऑन द क्लासरूम. This is the first interface when you just enter a classroom. Now you can see यहाँ पे ये 3 lines हैं, 9 dots plus and your first alphabet. आपके नाम का फर्स्ट अल्फाबेट यहाँ पे नजर आएगा. So these 3 lines क्लिक करेंगे तो एट अ ग्लांस आपने जितनी भी क्लासेस बनाई हुई हैं वो सब आपको यहाँ पे नजर आएंगी. Then calendar and all classes. These 9 dots represent the Google apps जो अभी हमने देखे थे, and
and this plus sign. Now what does this plus sign indicate? This plus sign indicates that there are two commands which are there in plus sign. That is, first is join a classroom and the second one is create a classroom. Now you can join any class as a student and you can create any class as a teacher. So both the things are totally depend on you. But whenever you join a class, whenever you join a class with a class code, आप जैसे ही join a class करेंगे, आपको एक class code पूछेगा और जब वो class code पूछेगा, then you will join that class as a teacher. ध्यान रखिए, sorry, you will join that class as a student, not as a teacher. याद रखिएगा, ठीक है? Then, but being a teacher, what we need to do is we need to create a class. Click on create a class. Create a class. Now class name. जैसे ही create a class के ऊपर क्लिक करते हैं वो पूछता है आपसे क्लास का नाम, ठीक है? So class name में आपको क्या लिखना है? So there is a standard set of instructions for creating a class name. That is your class code, sorry, your school code. Like आपका जो भी स्कूल कोड है 1 3 2 9 जो भी है, तो मैं बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 ले रहा हूँ, 4 डिजिट स्कूल कोड है. Then if your school is running in underscore and if your school is running in shifts, then shift 1. अगर जनरल शिफ्ट है तब भी शिफ्ट 1, अगर शिफ्ट 2 है then शिफ्ट 2, और शिफ्ट जनरल शिफ्ट है और शिफ्ट नहीं लिखना चाहते हैं आपका ऑप्शन है, ठीक है? Then क्लास, आप जो भी क्लास पढ़ा रहे हैं वो क्लास एंड सेक्शन, देन सब्जेक्ट, शिफ्ट अंडरस्कोर बेसिकली, देन टीचर नेम. आप जो भी टीचर, आपका जो भी नाम है वो आपको वहां लिखना है. लाइक जब भी हम क्लास नेम लिख रहे हैं उस क्लास नेम के अंदर आपकी पूरी क्लास की इंफॉर्मेशन नजर आनी चाहिए. देन सेक्शन, again you write your class name and class section. Subject आप already mention कर चुके हैं ऊपर. There are some set of standard subject mentioned over here. आप यहाँ से choose कर सकते हैं. Room number not mandatory, but फिर भी 101 मैंने create कर दिया. अब create करने पे हो सकता है कभी किसी सिस्टम में 1 मिनट लग जाए, किसी में 30 सेकंड लग जाए, किसी में एकदम जल्दी हो जाए. वो इसलिए क्योंकि जब भी हम एक क्लास क्रिएट करते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारा सामान ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, ड्राइव जनरेट होती है, ठीक है, कैलेंडर जनरेट होता है, बहुत सारे क्लास कोड्स जनरेट होते हैं, लिंक्स जनरेट होते हैं, तो उन सबको देखते हुए ये अपना टाइम लेगा. सो एज दिस इज अ क्लास और दिस इज द फर्स्ट इंटरफेस ऑफ अ क्लास जो हमने अभी क्रिएट करी है. सबसे पहले हम इस क्लास की सेटिंग्स पे जाएंगे. You will click on this setting. When I'll click on this setting, what I can see is जो हमने फर्स्ट जब हमने क्लास क्रिएट करा था वहां पे जो डिटेल हमने प्रोवाइड किया वो डिटेल हमने यहाँ पे देखा. 1 2 3 4 underscore 10th heat underscore science underscore Avdesh class description. Now what is this class description is for? देखिए this class is ये ऐप जो है वो बहुत सारी कंट्रीज में यूज हो रहा है, तो कभी कभी हम क्लास को सेग्रीगेट करके 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. एवरेज ग्रुप, बेटर ग्रुप या अच्छा ग्रुप, या फिर दोज हु नीड सम मोर हेल्प, सच काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर. अगर हमें ये सब चीजें डिस्क्राइब करनी हो क्लास में, हमारी में मैंने सिर्फ 10 बच्चे लिए एंड दिस क्लास इज आउटस्टैंडिंग क्लास, सो आई विल राइट आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑफ एनपी. तो मेरे को सिर्फ ये वो 10 बच्चे ही इस क्लास के अंदर मैं ऐड करूंगा
जो आउटस्टैंडिंग वाले हैं उनको मैं हॉट्स दे करके और अच्छा प्रिपेयर कराने की कोशिश करूंगा। तो दिस क्लास डिस्क्रिप्शन इज टोटली डिपेंड ऑन यू, हाउ यू विल राइट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? काइंडली टेक्स्ट मी। ओके, थैंक यू यशवंत जी, नीरज, अभिषेक, नीतू मैम, गुड। Okay, now what we need to do is, there are some general set of instructions जो कहती हैं क्लास कोड, स्ट्रीम, क्लास वर्क, डिलीटेड एंड गार्जियन समरी। इन सबको जरा देखते हैं एक बार, ये है क्या चीज? क्लास कोड। देखिए क्लास कोड क्या है? टू ज्वाइन अ क्लास, किसी एक क्लास को ज्वाइन करने के लिए बच्चों को दो तरीके से किसी भी क्लास को ज्वाइन कराया जा सकता है। ठीक है, व्हाट आर दोस टू वेज? पहला है बाय यूजिंग अ क्लास कोड। By using a class code. Now how will it work? It will work like this. आप इस क्लास कोड को बच्चों को प्रोवाइड कीजिएगा, बच्चे क्लास ज्वाइन कर पाएंगे। पहले मैं इस क्लास कोड के बारे में बताता हूँ। क्लास कोड के साथ में एक आपको ड्रैग ऑप्शन दिख रहा है, ड्रैग डाउन। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको चार ऑप्शन दिखाई देंगे, डिस्प्ले, कॉपी, रीसेट एंड डिसेबल। दिस क्लास कोड इज ऑटो जनरेटेड एंड नो वन कैन एडिट इट और no one can change it according to their own need. Like अगर मैं ये सोचूं कि नहीं, मेरे बच्चों को इजी सा क्लास कोड दे देते ताकि वो ना भूलेंगे नहीं, it doesn't suits, है ना? तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसको चेंज कर सकूं या मैं इसको रिप्लेस कर सकूं। ठीक है, तो देन डिस्प्ले करना है। इसको जब डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो ये इतना बड़ा नजर आएगा। ठीक है, अब इसको पढ़ने में आसानी रहेगी तो आप इसको स्नैपशॉट लेकर के बच्चे को भेज सकते हैं। बट मान लीजिए sometimes it happens in a technology world, it happens there are a lot of uncertainty in the technology world. ठीक है, it happens like that कि despite of the thing that you are providing the correct class code, बच्चे जो है वो class code एंटर करते हैं और होता क्या है, दिखाता है कि गलत है, class code is wrong. then what will you do? ठीक है, हमें क्या करना, उस समय क्लास कोड रीसेट कर देना। और जैसे ही हम क्लास कोड रीसेट करेंगे क्लास कोड चेंज हो जाएगा। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल डिस्ट्रीब्यूट द न्यू क्लास कोड टू द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। जो रह गए हैं सिर्फ उनको, जो ऑलरेडी एंटर्ड है क्लास के अंदर, उनके लिए क्लास कोड चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देन द लास्ट ऑप्शन इज डिसेबल। अब आपको ये लगता है कि मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और 40 के 40 एंटर हो चुके हैं, देन व्हाट विल यू डू? आप जो है इसको डिसेबल कर देंगे। फिर अंडर दैट कंडीशन डिसेबल करने पे कोई भी आपकी क्लास के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। नो वन विल बी एबल टू एंटर योर क्लास आफ्टर दैट क्लास कोड। After that class code. Now what I will do, अगर मेरे को फिर एक ऐसी कंडीशन आती है कि मुझे दोबारा क्लास के अंदर टीचर को या स्टूडेंट को एंटर कराना है, देन व्हाट आई विल डू, मैं इसको दोबारा इनेबल करूंगा। जब इनेबल करूंगा तो एक नया क्लास कोड जनरेट होगा। ठीक है, और फिर ये क्लास कोड काम करेगा, पुराना क्लास कोड नहीं करेगा। सो from my point of view, please do not reset the class code, please do not disable the class code until unless it is a dire need. Now come on to stream. Stream is like आप बच्चों को क्या परमिशन दे रहे हैं काम पोस्ट करने की, या क्या परमिशन नहीं देते हैं।
For example, when I click on it, there comes three options: student can post and comment, student can only comment, and only teacher can post and comment. So it is a very important thing. It is a very important thing कि हम बच्चों को क्या परमिशन दे रहे हैं. Now student can post and comment. What does this mean? It means कि हम सिर्फ और सिर्फ हम बच्चे को फुल राइट्स दे रहे हैं कि बच्चा कुछ भी पोस्ट कर सकता है, कुछ भी कमेंट कर सकता है, कुछ भी का मतलब कुछ भी पोस्ट कर रहा है, कुछ भी कमेंट कर रहा है. इसका मतलब है कि हम उसको फुल राइट्स दे रहे हैं कि वो हाँ कर सकता है कुछ भी. Now student can only comment. कमेंट का मतलब है कि जो हमने काम दिया है बच्चे को, बच्चे सिर्फ उसी के ऊपर पोस्ट एंड कमेंट कर रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज लाइक दैट. And the last option is only teacher can post and comment. It means that there is no provision that the child will be able to post and comment during the session or even after the session. तो हम जब हम टेस्ट वगैरह कंडक्ट कर रहे हैं उस समय only teacher can post and comment conditions पे हम रखेंगे. Then classwork on the screen. And this is kind of a notification type thing. So whenever you just click on the notification, आप देखते हैं कि जब फोन में भी मेल्स आती हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं या मैसेजेस आते हैं, कभी कभी सिर्फ ये लिखा हुआ देयर इज अ मैसेज, बट कभी कभी वो डिटेल्ड मैसेज भी आपकी लॉक्ड स्क्रीन के ऊपर दिखाता है. सो दिस इज द वेरी सेम काइंड ऑफ थिंग. शो अटैचमेंट एंड डिटेल. जब आपको मेल आएगा या कोई नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें वो डिटेल दिखाएगा. इसमें खाली कंटेंट्स नोटिफिकेशन दिखाएगा, बताएगा कि हाँ आपको मैसेज आया है या आपकी क्लास है या कुछ भी है. And if you want to stop the notification, then you just click on the hide notification, and the no notification will be sent to you or your mail ID. Now the next thing is show deleted item. Now deleted items जो है ये क्या है? आर्चिव एंड डिलीटेड आइटम का कंसेप्ट होता है. आर्चिव जो है वो यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है. अगर हम इसको ऑन कर देते हैं, then only teachers can see the deleted item or the archived items. ठीक है. बट हम इसको ऑफ करते हैं, then everyone can see the deleted item or archived item. So from my point of view, only teachers should be able to see the deleted or the archived item. इसको checkbox को ऑन कर दीजिएगा. Then there comes the guardian summary. ठीक है. But there is एक गार्जियन समरी का जो एक कंसेप्ट है, वो एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है. उसको समझते हैं थोड़ा सा क्या है. समटाइम्स देयर कम्स अ चिल्ड्रन हु यूज्ड टू से कि मैडम ने आज कोई होमवर्क नहीं दिया, मैडम ने आज कोई काम नहीं कराया, मैडम ने आज कुछ कहा, क्लास ही नहीं हुई हमारी. ठीक है. जब इस तरीके की चीजें सामने आती हैं तो उनसे बचने के लिए what we need to do is we will add a guardian to the student, and as we add a guardian to the student, all the mails जो भी हमारी स्टूडेंट के पास जा रही हैं उसकी कॉपी जो है वो बच्चे के पास में जाएगी, गार्जियन के पास में भी जाएगी. ठीक है. वो गार्जियन कैसे ऐड करना है एंड हाउ इट विल फंक्शन मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा. बट जब आप इसको ऑन रखेंगे तभी वो प्रोसेस कंप्लीट होगा. बट अगर आपने इसको ऑफ कर दिया, देन गार्जियन मेल आईडी डालने के बाद भी आप गार्जियन के पास मेल नहीं भेज पाएंगे. सो आई विल कीप इट ऑफ. देन देयर इज मैं इसको पहले सेव कर देता हूँ. एवरी टाइम जैसे आज आपको एक लिंक मिला है ना, आज आपको एक लिंक मिला था जिससे आपने ये मीटिंग ज्वाइन करी है, तो होगा क्या कि हर बारी आप इसी तरीके से लिंक क्रिएट करेंगे, फिर बच्चे को भेजेंगे. इस तरीके से तो हम पागल हो जाएंगे. सो बाय डिफॉल्ट हम एक गूगल मीट का लिंक जनरेट करके बच्चों के लिए यहाँ पे दे सकते हैं. अभी आपको मैंने यहाँ पे दिखाया, देखिए ये लिखा है ना मीट लिंक, तो यहाँ पे अभी ब्लैंक है. तो यहाँ पे जनरेट मीट लिंक के ऊपर क्लिक करके भी आप जनरेट कर सकते हैं.
or you can go to settings and generate a meet link. Click on it, you will generate a meet link. इसके भी अंडर ऑप्शंस है, कॉपी है, रीसेट है, ठीक है। अगर एक बारी काम नहीं कर रहा हो मीट लिंक तो आप उसको रीसेट कर देंगे एंड यू विल कीप इट विजिबल फॉर द स्टूडेंट, देन सेव इट। Now this meet link will be displayed over here. As you will click on it, एक another meet खुल जाएगा जिसका आईडी वही होगा, देखिए, ठीक है, इसका आईडी यही है और आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। सो दिस इज अ फिक्स्ड मीट, ये कभी नहीं बदलेगा, जब मर्जी आप चाहे उसको यूज करेंगे। यूज करने का मतलब है कि बच्चे और आप एक साथ जब भी मीटिंग करेंगे उस रूम के अंदर ऑटोमेटिकली एक सिंगल क्लिक पे ज्वाइन कर सकते हैं। So this is the basic structure of a Google Classroom जो मुझे अभी तक सेटिंग्स में बताना था, ठीक है ना। व्हेन ये क्लास बन गई तो अब क्लास के अंदर कौन चाहिए हमें? क्लास के अंदर हमें चाहिए टीचर एंड स्टूडेंट। सो फॉर अब बच्चे और स्टूडेंट कैसे जाएंगे वो हमें यहाँ पीपल में नजर आएगा। क्लिक ऑन द पीपल। नाउ हियर यू कैन सी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। नाउ अब टीचर और स्टूडेंट कैसे ज्वाइन करेंगे यहाँ पे ये देखते हैं। स्टूडेंट को ज्वाइन कराने के दो ऑप्शन है। फर्स्ट इज बाय यूजिंग इनविटेशन कोड जो हमने ऑलरेडी बच्चों को भेज दिया था, ठीक है। अब मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं करी, ठीक है, इस कोड से ज्वाइन करी ही नहीं, वो कर ही नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे, हम उनके मेल आईडीज पे इनविटेशन लिंक भेज देंगे। बट अब सबके मेल आईडीज तो हमें याद नहीं है और ना सबके नाम याद है एक साथ, तो व्हाट आई विल डू, आई विल कॉपी द मेल आईडीज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम वन प्लेस। आपके पास कहीं पे एक जगह जो है आपके स्कूल के सीएस ने, पीजीडी सीएस ने आपको मेल आईडीज प्रोवाइड कराए होंगे एक्सेल शीट में, आप वहां से उन सारे बच्चों की मेल आईडीज एक बारी में कॉपी कर लीजिए। कंट्रोल सी, देन गो टू क्लास, इनवाइट स्टूडेंट्स। नाउ हियर कंट्रोल वी। यहाँ पे जब ये आइकन आएगा देन यू प्रेस ऑन इट, प्रेस ऑन इट। एज यू प्रेस ऑन इट वो आपको दिखाएगा ये बच्चे जो हैं वो ऐड हो चुके हैं, ओके, ऐड नहीं हुए, सॉरी, ये आईडीज जो हैं इनको हम इनविटेशन लिंक भेजेंगे, ओके, नो इश्यूज। इनवाइट के ऊपर क्लिक कीजिए, बच्चों को इनविटेशन पहुंच जाएगा, ओके। सो दिस इज हाउ वी कैन सेंड अ इनविटेशन लिंक। सो लेट मी शो यू, एक इनविटेशन लिंक तो मैं आपको डमी आईडी पे बना करके भेज ही सकता हूँ। This is the mail ID to which I need to send an invitation. मैंने उसको क्लिक किया and I send a invitation. जैसे ही मैंने इनविटेशन पे क्लिक किया, देखिए बच्चे के सामने बच्चा एक तो लाइट कलर में दिखाया बिकॉज बच्चे को ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, और आपने इनवाइट कर दिया। ये आपकी जो एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो आपने पूरी कर दी कि हाँ मैंने बच्चे को इनवाइट भी किया। नाउ हाउ विल चाइल्ड एंटर अ क्लास? मैंने जब क्लास बनाई थी, ठीक है, तब मैंने बच्चे से एक आईडी पे लॉगिन किया था। उस आईडी का लॉगिन कर जीमेल पे लॉगिन किया था जब, तो हमारे पास जो फर्स्ट इंटरफेस आया था वो ये था, दिस इज अ जीमेल अकाउंट। बच्चे का जी सूट जीमेल अकाउंट है। आपके पास देखेंगे जो लास्ट इनविटेशन भेजा मैंने वो कुछ इस तरीके से आएगा, क्लास इनविटेशन। बच्चे को कुछ नहीं करना है, मेल खोलना है एंड ही विल ज्वाइन। क्लिक ऑन द ज्वाइन बटन। जैसे ही वो ज्वाइन बटन क्लिक करेगा he will be redirected to the Google Classroom, ठीक है।
और गूगल क्लासरूम में वो सीधा उस क्लास के अंदर जाकर के ज्वाइन करेगा. Now he had joined this class. क्लियर ना? उसने अब एक क्लास ज्वाइन किया. नाउ लुक, उत्कर्ष के सामने एक नाम लिखा हुआ आ रहा है, अवधेश लवानिया. ठीक है, दिस इज द ईमेल ऑफ द गार्जियंस. अब बेसिकली हुआ क्या है कि उत्कर्ष को ऑलरेडी एक गार्जियन अलॉट हो रखा है जो उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पर है. ठीक है, तो जैसे ही मैं उत्कर्ष को कोई भी काम भेजूंगा या उत्कर्ष को कोई भी मटेरियल भेजूंगा, वो ऑटोमेटिकली अवधेश लवानिया के पास में ट्रांसफर होगा, उनके पास भी जाएगा. बट ये अब आप कहेंगे सर ये तो बाय डिफॉल्ट आ गया. हाँ, बाय डिफॉल्ट इसलिए आ गया क्योंकि मैंने आज से 3 दिन पहले ये सेट किया था. ठीक है, अभी सेट करना कैसे है, लेट मी शो इट टू यू. दिस इज सम अनदर क्लास. ठीक है, मैंने इसके पीपल के ऊपर क्लिक किया और देखिए यहाँ पे जो ये इनवाइटेड लिखा हुआ है, इन बच्चों ने अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं करी है. बट आप जो डार्क कलर में देख रहे हैं, ये क्लासेस वो हैं, ये बच्चे वो हैं जिन्होंने क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं. ठीक है, अब इनके सामने फरहान अहमद के सामने इनवाइट गार्जियन लिखा हुआ है. सो हाउ विल इट वर्क, आपको इनवाइट गार्जियन क्लिक करना है एंड यू नीड टू टाइप द ईमेल एड्रेस ऑफ द पेरेंट ओवर हियर. नाउ ये सब जगह नहीं करना है. जैसे ही मैं फरहान अहमद के साथ में एक क्लास के अंदर इनवाइट गार्जियन करूंगा, ठीक है, वो उसकी हर क्लास वो जहां जहां पे भी लोकेट होगा, वो उसने जितनी भी क्लासेस ज्वाइन कर रखी होंगी, चाहे वो मैथ्स की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, ठीक है, वो सब क्लासेस में उसका गार्जियन जो है वो अपने आप सेट हो जाएंगे. तो जैसे आप फरहान अहमद हैं, उनके फादर का नाम ले लिया हमने, मिस्टर mohammed@gmail.com. तो हमने यहाँ पे मिस्टर mohammed@gmail.com लिखा एंड वी गो फॉर द जैसे मैंने मिस्टर mohammed@gmail.com लिखा एंड आई इनवाइट. जैसे ही मैं इनवाइट करूंगा, उनके नाम जो है वो यहाँ पे नजर आने लगेंगे. ये भी कर सकता हूँ मैं, एक से ज्यादा दो मेल आईडी भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ उनके लिए. ठीक है, सो लाइक दैट आई कैन ऐड अ पेरेंट टू द स्टूडेंट और आई कैन ऐड अ गार्जियन टू द स्टूडेंट. ठीक है, नाउ teachers, similarly, if I need to go for a multi-grade teaching, then how can I do? I can invite a teacher, and vice principals and HMs all can also join the class as a by inviting a teacher. वो बहुत आसान है, invite a teacher करो. यहाँ पे जिस टीचर को आपने इन्विटेशन भेजना है उसका नाम लिखो. ठीक है, ये जिस एडमिनिस्ट्रेटर को भेजना है उनका नाम लिखो यहाँ पे, मेल आईडी जो KVS वाली है, एंड देन इनवाइट एंड दैट टीचर विल जॉइन दिस क्लास. ठीक है, यू कैन आल्सो गो फॉर अ मल्टी ग्रेड टीचिंग, मतलब कोलैबोरेटिव टीचिंग भी आप कर सकते हैं. यहाँ पर आपने एक मान लीजिए 3 टीचर मिलकर के एक ग्रुप क्रिएट करते हैं. ठीक है, कोई एक उसका मास्टर बनेगा या क्लास टीचर बनेगा. 2 क्लासें 3 क्लासें एक साथ ज्वाइन कर लीजिए और तीनों टीचर यहाँ रही है, और जब भी क्लास हो, ठीक है, जब भी क्लास हो तो आप उस क्लास के अंदर टीचर्स को पढ़ा सकते हैं. सॉरी, वो टीचर्स जो हैं, तीनों टीचर जो हैं पूरी क्लास को या पूरे स्कूल के जितने भी बच्चे हैं एक साथ वीडियो लेक्चर दे सकते हैं. सो दिस इज हाउ वी नीड टू ऐड द टीचर्स एंड स्टूडेंट इन अ क्लास ग्रुप. यहाँ तक क्लियर हुआ? Adding people to the classroom is clear to everyone. Shall I proceed further? I need your responses so that I can proceed. Okay. Thank you, Sapna ma'am, Kiran sir, Neeraj, Savita, Preeti ma'am. Thank you. ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं. अब हमने क्लासरूम बना लिया, क्लास बना लिया. ठीक है, उसके अंदर हमने बच्चे भी जोड़ लिए, उसमें हमने टीचर भी जोड़ ली है. अब हमें क्या करना है? अब हमें
अब हमें पढ़ाई करानी है, तो पढ़ाई कराने के लिए हमें चाहिए क्लास वर्क। ठीक है, व्हेन वी एंटर, व्हेन वी क्लिक ऑन द क्लास वर्क, तो आपके सामने एक क्रिएट का ऑप्शन आएगा, मीट, गूगल कैलेंडर एंड क्लास ड्राइव फोल्डर, ये तीन ऑप्शन अलग से आएंगे। ठीक है, इन तीनों को हम अभी बाद में करेंगे, पहले हम गूगल क्रिएट पे जाते हैं, सॉरी और क्रिएट पे जाते हैं। व्हेन आई क्लिक ऑन इट, हम क्रिएट पे जाते हैं, तो क्रिएट पे जाने पे हमें चार चीजें मिलेंगी, असाइनमेंट, क्विक क्विज असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल एंड रीयूज पोस्ट, एंड द लास्ट इज टॉपिक। ठीक है, शुरुआत टॉपिक से करते हैं। जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ाते हैं उसके अंदर हमें बहुत सारे चैप्टर्स मिलते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई क्लास पढ़ाते हैं उसके अंदर हमें बहुत सारे टॉपिक्स मिलते हैं, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स मिलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता ना कि एक किताब के अंदर 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हैं या 10 टॉपिक्स हैं, तो उनको सबको खिचड़ी बना करके सामने रख दिया जाए कि सब मिला दिया, एडिशन भी उसी के अंदर, मल्टीप्लिकेशन भी उसी के अंदर, सबट्रैक्शन भी उसी के अंदर। मतलब अगर आप कुछ भी ले रहे हैं तो उसको बाइफरगेट और सेग्रीगेट करके अलग अलग पार्ट्स में रखा जाता है बुक्स के अंदर भी। तो आपके टॉपिक्स भी ना यहाँ पे सेग्रीगेट होने चाहिए और आप यहाँ पे टॉपिक क्रिएट करेंगे। सो क्लिक क्रिएट पे जाएंगे, सबसे पहले टॉपिक क्रिएट करेंगे। As I have taken the 10th science, so my first topic is, let it be circulatory system. Let it be CIRCULE, circulatory system. And ठीक है, then again I'll create another topic, skeleton. एक और टॉपिक मैं क्रिएट कर लेता हूँ, जस्ट टू मेक यू एक्वेंटेड विद द थिंग कि हो क्या रहा है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब देखिए होगा क्या, जब मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जब मैं असाइनमेंट क्रिएट करूंगा, उस असाइनमेंट में अगर मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डालूंगा किसी टॉपिक में, तो वो सारा कंटेंट मेरे को यहीं पे नजर आएगा। स्केलेटन में डालूंगा तो वो मेरे को यही नजर आएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में डालूंगा तो वो मुझे यही नजर आएगा। अगर सारे एक साथ नजर मिल जाएंगे, अगर कैटेगरी नहीं बनेगी और सारे एक साथ मिल जाएंगे, तो बच्चे को भी ढूंढने में परेशानी होगी और टीचर को भी ढूंढने में परेशानी होगी कि उसको कौन सा असाइनमेंट उठाना है, कौन सी क्विज करनी है, कब करनी है, उसको पता ही नहीं लगेगा। सो टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ कंफ्यूजन, हमें ये तीन, मतलब मैंने यहाँ तीन बना के दिखा दिया है आपको। आप चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करके डाल दीजिए, चैप्टर 1 का नाम डाल दीजिए साथ में, तो आपको आसानी रहेगी। चैप्टर 1 का सारा मटेरियल ये है, चैप्टर 2 का सारा मटेरियल ये है, चैप्टर 3 का सारा मटेरियल ये है। नाउ आई क्लिक ऑन द क्रिएट। ठीक है, क्रिएट पे सबसे पहला है असाइनमेंट। असाइनमेंट सबसे पहले मटेरियल से शुरू करते हैं। ठीक है, मटेरियल, बेसिकली मटेरियल क्या है, जब भी आप बच्चे को पढ़ाने के लिए कोई भी सामान प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, आपने नोट्स बनाए हैं, आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं आपके नोट्स, तो आप जब कोई मटेरियल बच्चे के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे प्रेजेंट करें मटेरियल पे इसलिए प्रेजेंट करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्रिएट पॉइंट्स नहीं है, वैल्यू पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, बच्चे को जजमेंट करने का नहीं है, सिर्फ बच्चे को पढ़ने के लिए देना है, देखने के लिए देना है। सो यू विल नीड टू राइट this is a circulatory system. ठीक है, they are the deep notes. now deep notes हैं और circulatory system क्या है, तो मैं यहाँ पे circulatory system लिखूंगा। एंड अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा है, पहले मैं यही बता देता हूँ आपको, ये असाइनमेंट मुझे क्लास के कितने बच्चों को देना है ये यहाँ से डिफाइन होगा। ठीक है, अगर मेरे पास में 4 केमिस्ट्री के सेक्शन है या 4 फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं 12th की, तो मेरे पास में ये 4 सेक्शन में चारों क्लास से उठा लूंगा। ठीक है, जब मैं ये चारों उठा लेता हूँ, इट मींस अब ये इन चारों के पास जाएगा। 5 क्लासें हो गई, 5 क्लास में जितने भी बच्चे होंगे
वो यहाँ पे सारे सेलेक्ट हो गए, बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो गए। जब मैंने 5 क्लासेस ली तो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो गए। ठीक है। अदरवाइज अगर आप किसी एक क्लास को उठाते हैं, ठीक है, तो आपके पास में ये ऑप्शन भी होता है कि आप उस क्लास में से कितने बच्चों को ये देना चाहते हैं, है ना। तो ऑल ऑप्शंस आर फ्री फॉर यू। ऐसा नहीं है कि 5 क्लासों में से भी आप सेलेक्ट कर पाएंगे, बट 5 क्लास हैं तो पांचों क्लासों में एक साथ चला जाएगा। और एक क्लास के अगर आप सिलेक्टेड स्टूडेंट के पास भेजना चाहते हैं, सो दैट ऑप्शन इज ऑल्सो ओपन फॉर यू। ठीक है। इसके ऊपर अभी हम 2 मिनट में आते हैं। पहले ऐड, देखिए यहाँ पर आपको 2 कॉलम दिख रहे हैं, एक ऐड और एक क्रिएट। देखिए ऐड और क्रिएट क्या है, अगर आपके पास में बहुत सारा डाटा ऑलरेडी प्री डिफाइंड पड़ा हुआ है कहीं पे, ठीक है, देन यू नीड टू गो फॉर ऐड। ठीक है। ऐड करेंगे तो आपके पास ये 4 चीजें नजर आएंगी, गूगल ड्राइव, गूगल लिंक, फाइल एंड यूट्यूब। गूगल ड्राइव पे जाते हैं। गूगल ड्राइव पे आप अपनी जो केवीएस आरओ वाली गूगल ड्राइव है, ठीक है, उसी को ज्यादा यूज कर पाएंगे। ठीक। और हाँ जी, एनी डाउट, किसी ने माइक ऑन किया है? ओके। हाँ, आप कुछ भी आपने यहाँ से सेलेक्ट किया, हाँ, या आपने जो भी फोल्डर आपने क्रिएट किए हुए हैं वो आपने सेलेक्ट करे। सेलेक्ट करने के बाद में ऐड किया। नाउ दैट कंटेंट इज एडेड। सिमिलरली क्लिक ऑन द ऐड एंड इफ यू वांट टू प्रोवाइड अ लिंक, आप किसी कहीं पे कोई डाटा है, आप उसका लिंक प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इस कंटेंट को पूरे को पढ़ लें, तो व्हाट यू कैन डू, आप इस लिंक को लीजिए, यहाँ से कंट्रोल सी कीजिए और यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट करके ऐड कर दीजिए लिंक। नाउ द लिंक इज एडेड टू द योर असाइनमेंट और टू द मटेरियल। अब बच्चे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जब बच्चों को हम इसे सेंड कर देंगे, बच्चे इस पे क्लिक करके डायरेक्टली इसी वाली वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। सो लाइक दिस ऑल्सो यू कैन अटैच अ लिंक। एक मिनट, आप किसको मैसेज नहीं भेज पा रहे हैं? एक मिनट सर प्लीज। So you can add a link. Now similarly if you want to attach a file from the recent documents, और आपके पास में आपके सिस्टम के अंदर कोई फाइल है, then you will select the file from your device. For example, मेरे को एक फाइल डाउनलोड को करना है, ये वाला मैंने इसको ओपन किया, as I'll open it, ठीक है, तो बड़ा भारी फाइल है, मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। ठीक है, अपलोड कीजिए। हाँ, ये एक वर्कशीट या एक कंटेंट जो भी था, लेट इट भी कोई कंटेंट है, वो फाइल अपलोड हो गई आपके सिस्टम से। देन द लास्ट ऑप्शन इज यूट्यूब। ठीक है, आपको पता है आपने कौन सी वीडियोस आपने यूट्यूब पे देख रखी हुई है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ सर, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लिक किया मैंने। एज आई क्लिक ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम, ये यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस आ गई, बट मैं जो कह रहा था वो यहाँ पे रिलेटेड है।
कि आप लोगों को पता है आपने कौन कौन सी वीडियोस चेक कर रखी हैं, कंटेंट जिस वीडियो का सबसे सूटेबल हो आप प्लीज उसी वीडियो को सेलेक्ट करें कराएं। ठीक है, मैंने एक वीडियो ये सेलेक्ट करी, ये मुझे अच्छी लगी, मैंने ऐड कर दिया, ऐड करूंगा तो ये वीडियो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। नाउ आई थिंक कि मेरे पास में इस चैप्टर से रिलेटेड ये सारा कंटेंट बच्चों के पास पहुंचना चाहिए था, मैंने ये सब सेलेक्ट किया एंड मैं इसको यहाँ पे पोस्ट स्केड्यूल एंड सेव ड्राफ्ट, ये तीन ऑप्शन है यहाँ पे, ये मैं समझा देता हूँ एक बार क्योंकि ये सब में मिलेंगे, दीज आर द कॉमन ऑप्शन। पोस्ट किया तो अभी के अभी जाएगा, स्केड्यूल करूंगा तो जिस समय से स्केड्यूल करूंगा उस समय जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसको 22 तारीख को बाई डिफॉल्ट 22 तारीख दिखा रहा है, ठीक है, संडे को 21 तारीख दिखा देता हूँ, 21 तारीख को सुबह 8 बजे स्केड्यूल कर देता हूँ। जैसे ही मैं स्केड्यूल पे क्लिक करूंगा ये सेट हो जाएगा एंड दिस विल ऑटोमेटिकली बी सेंड टू all the student of this classroom at 8 o'clock in the morning on 21st of June। ठीक है, मैं स्केड्यूल कर देता हूँ, अभी सुबह 8 बजे स्केड्यूल हो चुका है। सर्किल यहाँ लिखा हुआ है, देखिए scheduled for January 21 8 AM। ठीक है, मैं इसको रीस्केड्यूल भी कर सकता हूँ मेरे को जरूरत है तो। ठीक है, एडिट पे गया, स्केड्यूल पे गया, ये है, मैं इसको रीस्केड्यूल यहाँ से कर सकता हूँ। मुझे अब 22 को भेजना है, अब मैं 22 को भेजूंगा। ठीक है, तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ठीक है, बस जस्ट वी नीड टू वर्क ऑन इट। नाउ गोइंग बैक टू क्रिएट, मटेरियल मैंने दे दिया, मटेरियल देने के बाद में मुझे अगर बच्चों का टेस्ट लेना है, ठीक है, तो असाइनमेंट और क्विज असाइनमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, आई हैव क्लिक्ड ऑन द असाइनमेंट। अब यहाँ पे देखिए असाइनमेंट दो तरह के देखे थे हमने, क्रिएट करेंगे असाइनमेंट, हमने दो तरह के देखे थे, असाइनमेंट एंड क्विज असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट है जो आपने अपने हाथ से पेपर पे बना करके या टाइप्ड मैसेज वर्कशीट वगैरह बना करके रखी हुई है, दे आर कॉल्ड द असाइनमेंट। ठीक है, तो जो असाइनमेंट बने हुए हैं उन असाइनमेंट्स को आप मतलब सर्कुलेट कर सकते हैं बच्चों के साथ में। बट जब हम क्विज असाइनमेंट की बात करेंगे तो क्विज असाइनमेंट में क्या होता है कि बच्चों को वहीं के वहीं इवेल्युएट भी हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली सेल्फ इवेल्युएशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। सो आई गो फॉर असाइनमेंट। मैं असाइनमेंट गया, असाइनमेंट क्लिक किया, मैंने असाइनमेंट पे क्लिक किया, टाइटल पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे जो कोई असाइनमेंट दे दिया, मान लीजिए if you want to give some kind of instructions you can give it over here। then अगर वो असाइनमेंट आपका गूगल ड्राइव पे है तो वहां से लीजिए, लिंक पे है, यूट्यूब पे है, फाइल पे है, तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। इफ यू वांट टू क्रिएट इट राइट एंड देन ऑन द डॉक्स, देन आप यहाँ पे डॉक्स के ऊपर जाकर के क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको डॉक समझा रहा हूँ कि डॉक पे कैसे काम करते हैं। ठीक है, मैं अब आपको यहाँ पे डॉक समझा रहा हूँ कि डॉक कैसे काम करेगा। ठीक है, डॉक इज ऑटो सेव क्वेश्चन मोड। आपने मान लीजिए कहीं एक जगह क्वेश्चन टाइप करके रख रखे हैं, ठीक है, एंड यू वांट टू कॉपी एंड पेस्ट इट ओवर हियर, ठीक है, तो आप डायरेक्टली वहां से यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक, अदरवाइज इफ यू वांट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन मैंने ऐसे लिख लिया। हाँ, तो दिस इज फॉर हाउ टू राइट। अब यहाँ पर आपने 10 क्वेश्चन बना करके बच्चों को भेज दीजिए, उसका बच्चा आंसर डिस्क्रिप्शन में लिख करके आपको भेजेगा असाइनमेंट में। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट अ असाइनमेंट। अब यहाँ पर जो विशेष तौर पे हिंदी वाले शिक्षक हैं वो थोड़ा ध्यान देंगे।
यहाँ पर हम ना हिंदी और लैंग्वेज को भी यूज कर सकते हैं, आप दूसरी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। आप क्लिक करेंगे लैंग्वेज के ऊपर, फाइल में, सॉरी मैं दोबारा बताता हूँ, एक बार फाइल में जाएंगे, लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप हिंदी ढूंढ लीजिए, नीचे आपको हिंदी मिलेगा, हिंदी पे क्लिक करेंगे, हिंदी पे क्लिक करेंगे, यहाँ आ लिखा हुआ आ गया, कंट्रोल करेंगे, उसको क्लिक करेंगे और फिर आप हिंदी लिखेंगे तो हिंदी में लिखा हुआ आएगा। There is some error, ठीक है, but it happens like that only, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। आप यहाँ पे वो सारे काम कर सकते हैं जो आप गूगल वर्ड में, सॉरी MS वर्ड में करते हैं, वो आप सारे काम यहाँ कर सकते हैं। नाउ नो नीड ऑफ शेयरिंग इट और नथिंग टू बी डन, बस सिंपली आप इसे बंद कर दीजिए। बंद करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास में, क्लिक करेंगे आप इसे, तो यहाँ देखेंगे आप ऑटोमेटिकली जो आपने वहां लिखा था वो सब ऑलरेडी यहाँ पे सेव है, ठीक है। सो देयर इज no need of sharing or doing anything over anywhere. Now create पे जाएंगे, जब हम यहाँ के इन ऑप्शंस की बात करते हैं तो गूगल डॉक्स इज इक्वल टू MS ऑफिस वर्ड, स्लाइड इज इक्वल टू पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, शीट इज इक्वल टू एक्सेल, ड्राइंग इज इक्वल टू जो आपका MS पेंट होता है उसके जैसा, एंड फॉर्म्स इज इक्वल टू एडोबी फॉर्म्स के जैसा, जिसके अंदर हम सारे फॉर्म्स वगैरह जनरेट करके दिखाते हैं। नाउ हियर आर सम, ये यहाँ पे पर्टिकुलर्स एक बार देखते हैं। अभी हमने आपको गूगल डॉक्स दिखाया, अगले जब हम क्विज असाइनमेंट करेंगे तो उसमें हम फॉर्म्स बनाना सीखेंगे। अगेन ये बता चुका हूँ पॉइंट्स, आप पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर दीजिए। यू वांट टू, पॉइंट्स को आपको सेट करने हैं कि आपने 10 क्वेश्चन दिए हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, 20 मार्क का पॉइंट हो गया, ठीक है। ड्यू डेट डिफाइन कर दीजिए, आपने ड्यू डेट दे दिया, 21 तारीख को खत्म करना है मुझे, टाइम का कोई बाउंड वो नहीं है, 21 तारीख को इतने बजे। टॉपिक मैंने स्केलेटन लिया है तो स्केलेटन में डाला मैंने रूब्रिक्स। रूब्रिक्स वैसे तो सेकंड स्पेल में है, जो सेकंड ट्रेनिंग होगा, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट में बता देता हूँ रूब्रिक्स को कैसे सेट करना है, कैसे डिफाइन करना है। देखिए रूब्रिक्स यहाँ पे ऐसे डिफाइन होता है, मान लीजिए आपने एक क्राइटेरिया ले लिया, क्वेश्चन आंसर का क्राइटेरिया ये है कि आपने 10 क्वेश्चन दिए, 10 क्वेश्चन में से बच्चे ने 5 क्वेश्चन सही करे, तो आप सबसे पहले तो टाइटल ले लीजिए, यहाँ पे स्केलेटन, डिस्क्रिप्शन है आपका, ड्राइंग ले लिया आपने, एक ड्राइंग का क्वेश्चन दिया है, बच्चे ने 5 में ड्राइंग बहुत अच्छी बनाई है, पेंसिल से बनाई है, नहीं बनाई है, वो सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे लेते चले जाइए। मैं यहाँ पर आपको 5 पॉइंट स्केल एक बार क्रिएट कर देता हूँ प्लस प्लस करके, ठीक है। एक पॉइंट आप तब देंगे जब बच्चे ने पेन से बनाया है, वेरी अनटाइडी वर्क है, ठीक है। आप 2 पॉइंट उसको तब देंगे जब बच्चे का वर्क टाइडी है थोड़ा सा, ठीक है, पर बनाया पेन से ही है। 3 नंबर आपने तब दिए जब थोड़ा अनटाइडी है बट बनाया पेंसिल से है, ठीक है। 4 नंबर दिए आपने जब बच्चे ने पेंसिल से बनाया, एंड ही ट्राइड टू वेरी वेल, ही ट्राइड वेरी वेल, और उसने ना वो भी किया है, लेबलिंग वगैरह भी थोड़ी बहुत कर रखी है। देन आप उसको 5 पॉइंट सब दे रहे हैं जब वेरी लेबल डायग्राम है, टाइडी है, बहुत सारी चीजें, मतलब सब कुछ अगर किया हुआ है तो वो एक, हाँ, तो वो टाइडी है, वो उसको 5 पॉइंट्स दे दिया। नाउ दिस इज अ क्राइटेरिया। अब सिर्फ 5 नंबर का हुआ, सिर्फ मैंने तो 20 नंबर की ग्रेडिंग कर रखी है, तो मुझे ऐड क्राइटेरिया करना पड़ेगा और 5 नंबर का एक क्राइटेरिया देना है, ठीक है। फिर उसमें हम ये देंगे कि बच्चे ने आंसर सारे बहुत अच्छे से लिखे हैं, ठीक है, और क्राइटेरिया ये लेना है, मतलब आप
बीइंग अ टीचर आप ये देखिए कि आप बच्चे को जज कौन कौन से स्केल पे कर रहे हैं, और वो सारे स्केल आप यहाँ पे लिख करके उसको सजेस्ट कर दीजिए। 5 5 5 20 के हो जाए, 4 स्केल ले लीजिए, 20 का होगा, एंड देन यू क्लिक ऑन द सेव बटन। तो आपका रूब्रिक्स 5 पॉइंट्स दिखा रहा है, ठीक है, तो वो 20 पॉइंट्स का हो जाएगा। जब आप 4 रूब्रिक्स लेंगे तो वो 20 पॉइंट्स का होगा और वो सेव हो जाएगा। एंड अगेन यहाँ पे असाइन है, अभी के अभी असाइन करना है तो अभी असाइन कर दीजिए। स्केड्यूल करना है, 5 दिन बाद देना है तो 5 दिन बाद स्केड्यूल हो जाएगा। एंड सेव ड्राफ्ट करना है, ठीक है, सेव ड्राफ्ट करना है तो उसको सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कर दीजिए। एंड इफ यू थिंक दैट यू हैव डन अ मिस्टेक देन डिस्कार्ड ड्राफ्ट, ठीक है। नाउ आप गूगल डॉक्स के सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 ऑप्शन, एक ड्रैग बॉक्स और है, ड्रॉप डाउन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको दिखा रहा है स्टूडेंट कैन व्यू फाइल। इफ यू क्लिक ऑन इस स्टूडेंट कैन व्यू फाइल तो सिर्फ बच्चे इस फाइल को देख पाएंगे, बट स्टूडेंट कैन एडिट फाइल। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट जो है इस फाइल को एडिट भी कर सकते हैं, इसके अंदर अपने आंसर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो चाहता हूँ कि स्टूडेंट यहीं पे अपने आंसर लिख दें, तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे कर दूँ मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट। जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो हर बच्चे के पास इसकी कॉपी चली जाएगी और हर बच्चा इसको इंडिविजुअली एडिट करके मुझे भेज सकेगा। हर बच्चा इसको इंडिविजुअली एडिट करके मुझे भेज सकेगा और मैं उसको वहीं के वहीं चेक भी कर दूंगा ऑनलाइन ही। कहाँ पर आएगा ये आएगा आपका गूगल ड्राइव के अंदर फोल्डर बंद करके, उसके अंदर सामान सारी चीजें नजर आएंगी, ठीक है। नहीं तो क्लासरूम के अंदर नजर आएंगी, दोनों में से कहीं एक जगह नजर आएंगी, ठीक है। तो हम वहां पे देख करके उसको वहीं के वहीं ईच स्टूडेंट की कॉपी को हम वहीं के वहीं चेक भी कर देंगे। नाउ वी विल असाइन इट। नाउ दिस वर्क इज असाइन टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 1 2 3 अंडरस्कोर 10 ओके। ये देखिए एक यहाँ पे काम अभी असाइन हो गया, इसका ड्यू डेट है जून 20। नाउ गोइंग बैक टू क्रिएट, हमने असाइनमेंट देख लिया, मटेरियल देख लिया, क्वेश्चन की बात हम थोड़ी देर में करेंगे। अभी हम बात करते हैं क्विज असाइनमेंट की। क्विज असाइनमेंट पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। अभी हमने 2 टॉपिक में काम कर लिया है, अब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे चलते हैं, ठीक है। क्विज बनाते हैं हम, टेस्ट लिखा हमने बेसिकली, दिस इज अ टेस्ट। Now instruction the instruction for this test is like they need to complete it within 20 minutes, 30 minutes or whatever specific instructions you want to give, you can give it over here, ठीक है। बना बनाया है कहीं पे क्विज, तो भी आप ऐड करके लिंक करके या गूगल ड्राइव से कॉपी करके यहाँ पे ले सकते हैं, बट अगर नहीं है क्रिएट करना है तो जस्ट क्लिक ऑन दिस गूगल ब्लैंक क्विज एंड आपके पास में ये वाला फॉर्म आएगा। ब्लैंक क्विज है, ब्लैंक क्विज को लिखा CNC कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। यहाँ ब्लैंक क्विज लिखा हुआ है, इसको भी मैं CNC कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इफ यू वांट टू गिव द फॉर्म डिस्क्रिप्शन यू कैन गिव, you want to give the description over here, you can give the description, then directly come to the question, whatever question is there in your mind, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हाउ मैनी टाइप्स of bands ठीक है। मैंने लिखा हाउ मेनी ब्रेन्स डू ह्यूमन हैव, ठीक है। मुझे नहीं पता क्वेश्चन सही है या गलत है, बट लेट इट बी, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया। क्वेश्चन लिखने के बाद में मल्टीपल चॉइस पे मैंने क्लिक किया। नाउ यू कैन सी द टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन दैट आर देयर इन दिस ड्रॉप डाउन बॉक्सेस, ओके। नाउ जो ऊपर के दोनों क्वेश्चन हैं, ठीक है, दे आर द डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन
जिनका इवैल्यूएशन अच्छे तरीके से क्विज टाइप ऑफ असाइनमेंट में नहीं किया जा सकता। तो हम इन क्वेश्चनों को देंगे जरूर, बट देने के लिए हम इन्हें एक सेक्शन अलग बनाएंगे, ठीक है। दैट आई विल लेट यू नो राइट नाउ, अभी बताऊंगा जैसे ही पहले ऊपर से लेते हैं। नाउ मल्टीपल चॉइस चेक बॉक्स एंड ड्रॉप डाउन, ये तीन टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये बहुत सटीक होते हैं। लाइक मल्टीपल चॉइस में आपके पास एक ऑप्शन, एक करेक्ट आंसर होता है आउट ऑफ 3, ठीक है, या 4 या 5, हाउ मेनी, और जितने भी आप देना चाहें। चेक बॉक्स में आपके पास में होता है कि आपने एक से ज्यादा अगर करेक्ट आंसर्स हैं तो आप चेक बॉक्स बना करके दे दीजिए उनको, ठीक है। मतलब चारों आंसर लिख दीजिए या 3 आंसर करेक्ट लिख दीजिए, एक रॉन्ग लिख दीजिए, तो वो सारे सही आंसर्स को चेक करेंगे, चेक टिक कर देंगे। ड्रॉप डाउन में जाएंगे, ड्रॉप डाउन में क्या होता है, देयर आर लाइक चारों आंसर्स एक साथ, जैसे हम देख रहे थे, हम यहीं पे देख लेते हैं, दिस इज जो ड्रॉप डाउन है, इसको आप क्लिक करोगे तो सारे आंसर्स आ जाएंगे और आपको जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको चूज करना है। ओके, दिस इज हाउ दीज थ्री वर्क। नाउ लीनियर स्केल, ठीक है, फाइल अपलोड अभी बताते हैं क्या है। लीनियर स्केल, मल्टीपल चॉइस ग्रिड एंड चेक बॉक्स, दीज आर टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो दीज आर द टाइप ऑफ these are type of जो क्रॉस मैच की फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ये वाले आंसर्स क्वेश्चन है, ठीक है। लीनियर स्केल, मल्टीपल ग्रेड, और इसका एक एग्जांपल छोटा सा समझा देता हूँ आपको। आप एक देखते होंगे जब छोटे बच्चों के लिए एक चीज यूज करते हैं नाउन में, बेसिक कंसेप्ट में, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, एंड वी प्रोवाइड देम द सेट ऑफ वर्ड्स। कुछ सेट ऑफ वर्ड्स दे दिया और उनको सेग्रीगेट करना है नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग में, ठीक है। तो वो सारे काम जो है वो आप मल्टीपल चॉइस ग्रिड या चेकबॉक्स ग्रिड में कर सकते हैं। सो फाइल अपलोड बेसिकली क्या है, अगर आप यहाँ पे इमेज या वीडियो या कोई फाइल अपलोड करना चाहते हैं या यहाँ कुछ फाइल दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसको दे दिया मल्टीपल चॉइस ऑप्शन, मैंने ऑप्शन दिए, मुझे 4 ऑप्शन तो देने ही हैं, 3, 4, 5, ठीक है। नाउ नाउ देयर इज अ थिंग, करेक्ट आंसर की, आंसर की के ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी करेक्ट आंसर है आप उसको चेक इन कर दीजिए और पॉइंट्स अलॉट कीजिए। लाइक दिस क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स, लेट इट बी डन। ओके, नाउ आप अपने इंटरफेस पे देख पाएंगे, एक क्वेश्चन है, एक उसके 4 ऑप्शन है, जो ग्रीन से टिक्ड है वो करेक्ट ऑप्शन है और 2 पॉइंट का क्वेश्चन है, ठीक है। एंड दिस इज अ रिक्वायर्ड चेक बॉक्स, ठीक। रिक्वायर्ड चेक बॉक्स, अगर आप ये जानना चाहते हैं बच्चे से कि नहीं उसका इंटेलेक्चुअल लेवल कितना है, ठीक है, तो आप बच्चे के रिक्वायर्ड को चेक इन कर दीजिए। अब क्या होगा, बच्चा जो है जब तक इस क्वेश्चन को आंसर नहीं देगा तब तक वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो अगर वो मैंडेटरी हो जाएगा फिर ये क्वेश्चन सबके लिए अटेम्प्ट करना, ठीक। तो हम देखो, हम जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो उसमें लिखा होता है ना कि दीज क्वेश्चंस आर मैंडेटरी, दीज क्वेश्चंस आर मैंडेटरी, तो वो मैंडेटरी कंसेप्ट जो है वो यहाँ से चेक इन करके नजर आएगा। देन देयर कम्स, ये वाले जो कॉलम्स हैं अब हम इनके ऊपर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक इमेज है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऐड क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, अनदर क्वेश्चन विल बी एडेड, ठीक। नाउ क्वेश्चन तो ये दिया मैंने, लुक एट पिक एंड देन आंसर, ठीक है, देन आंसर लिखा ही नहीं, लुक एट द पिक एंड आंसर, ठीक है जी। मैंने ये लिखा, मैंने एक पिक्चर ऐड करी ना। ऑप्शन बहुत सारे हैं, आप कहीं से भी कोई पिक्चर ऐड कर सकते हैं।
नाउ दिस इज अ पिक्चर, ठीक है, मेरे पास अभी रेडीली यही अवेलेबल थी, मैंने यही चिपका दिया। हाँ, तो मैंने ये पिक्चर चिपका करके यहीं पे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, ऊपर ही मैं उसमें दे देता हूँ व्हाट आर द करेक्ट, ठीक है, यहीं पे पिक्चर की जगह पे व्हाट आर द करेक्ट और व्हाट इज द करेक्ट इमेज दैट कैन बी फॉर्म्ड विद दिस पैनग्राम। ठीक, तो बेसिकली द कंसेप्ट इज कि मेरे को क्वेश्चन बनाना कैसे है, पिक्चर दिया और क्वेश्चन बना लिया। इस पिक्चर की जगह मैं यहाँ से वीडियो भी ऐड कर सकता हूँ, मेरे पास दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं, ठीक है। सो बोथ द थिंग्स कैन बी डन, ठीक है। इफ यू वांट टू ऐड अ अटैचमेंट यहाँ से, तब भी आपको पास में वही चीज मिलेगी, फाइल अपलोड करने के बाद में भी आपके पास यही चीज आएगी। सो from three ways we can upload a file at this place. Now what I need to do is ये मेरा एक सेक्शन हो गया, मान लीजिए 10 क्वेश्चन हो गए। नाउ आई नीड टू गो फॉर अ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, तो मैं एक यहाँ पे सेक्शन क्रिएट करूंगा, ठीक है। सेक्शन क्रिएट करने के बाद में मुझे यहाँ पे लिखना है सेक्शन 2, सेक्शन 2 तो ऊपर लिखा ही हुआ है, डिस्क्रिप्टिव type questions, ठीक है, and then I'll add a question in this descriptive way। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखूंगा, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस, क्वेश्चन लिखा और उसका आंसर बच्चे यहाँ देंगे। जो भी आंसर आएगा आपके पास में वो रिस्पॉन्स शीट में आएगा इन अ फॉर्म ऑफ अ टेक्स्ट, ठीक है। और जो फॉर्म ऑफ अ टेक्स्ट में रिस्पॉन्स शीट में आएगा वो आपको मैन्युअली चेक करना होगा। तो इस तरीके से जो है मैं ये फॉर्म्स को क्रिएट करूंगा। फॉर्म्स क्रिएट करने के बाद में मेरे पास में यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, आई है, कस्टमाइज थीम है, ठीक है। मैं इनका यूज बताता हूँ आपको। कस्टमाइज थीम्स तो लाइक कलर वगैरह है, आपको जो चूज अच्छा करना है, मुझे रेड कलर चाहिए, मुझे येलो चाहिए, मुझे ग्रीन चाहिए, आपको जैसा भी कलर चाहिए दैट यू कैन चूज फ्रॉम हियर, ठीक है। फॉन्ट आपको चेंज करना है, डेकोरेटिव, फॉर्मल, प्लेफुल, ठीक है, तो वो आप यहाँ से फॉन्ट्स भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आपको कैसा करना है। रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये दिखता कैसा है आपका गूगल फॉर्म, ये आपको दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। फॉर्म बनने के बाद में नेक्स्ट का मतलब है कि आप नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे यहाँ से, ठीक है। देन फिर से बंद करना है, ठीक है। सेटिंग्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसको पढ़ना, इसको देखना जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस, व्हेन आई क्लिक ऑन इट, ठीक है, ये सबके ईमेल एड्रेस लेगा, बट बाय डिफॉल्ट आल्सो इट विल कलेक्ट ऑल द ईमेल एड्रेसेस, ठीक है। नाउ दिस इज रिस्ट्रिक्ट टू द यूजर्स इन KVS दिल्ली रीजन एंड इट इज ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये बाय डिफॉल्ट जो है ये इसने चेक इन किया हुआ है, ठीक। ये चेक इन कर देंगे हम तो सिर्फ और सिर्फ केवी के बच्चे जो हैं, केवी के बच्चे और वो भी दिल्ली रीजन की जो मेल आईडी से लॉगिन कर रहे हैं वो ही सिर्फ इसको लॉगिन करके आंसर दे पाएंगे। अगर मैं इस चेकबॉक्स को बंद कर दूंगा, ठीक है, तो इसको कोई भी कर पाएगा। बट बेटर रहेगा कि जब हम काम कर रहे हैं, हम केवी के बच्चों के लिए कर रहे हैं, दिल्ली वालों के लिए, तो हम इसको चेक को ऑन करेंगे। नाउ लिमिट टू वन रिस्पॉन्स। देखिए बच्चे क्या करते हैं, एक बार रिस्पॉन्स दिया, करेक्ट आंसर पता लग जाता है, पता लगने के बाद दोबारा फिर रिस्पॉन्स दे देंगे आपको। तो मैं इसको लिमिट कर देता हूँ, नहीं, एक बार में बच्चा एक ही रिस्पॉन्स देगा। नाउ एडिट आफ्टर सबमिट। एडिट आफ्टर सबमिट सेज कि बच्चा एक बार आंसर सबमिट करने के बाद क्या एडिट कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है, अगर आप इस चेकबॉक्स को टिक कर देंगे तो। बट मैं नहीं चाहता कि बच्चा एडिट करे, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको आंसर पता लग गया, आंसर पता लगने के बाद अगर दोबारा एडिट करके आंसर सही सारे को मार्क कर देगा तो आपको तो पता ही नहीं लगेगा बच्चे के अंदर क्या मतलब वो कहाँ पर है, उसका स्टैंडर्ड क्या है। तो आपको इसे चेकबॉक्स नहीं करना है ना। सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज, बच्चे अपने समरीज को और चार्ट्स को दोबारा देख सकता है। इस बॉक्स को ऑन कर दीजिए तो उसको अपना रिजल्ट वहीं के वहीं समझ में आ जाएगा। प्रेजेंटेशन, शो प्रोग्रेस बार एंड सफल ऑर्डर क्वेश्चन। प्रोग्रेस बार को ऑन किया, 10 क्वेश्चन दिए थे, बच्चे ने 4 किए, तो ऊपर लिखा हुआ आएगा 4 आउट ऑफ 10 कंप्लीटेड, 5 आउट ऑफ 10 कंप्लीटेड, 6 आउट ऑफ 10 कंप्लीटेड। शफल क्वेश्चन ऑर्डर, शफल क्वेश्चन ऑर्डर लाइक बोर्ड्स में या आप जब एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस देते हैं तो क्या होता है कि 4 सेट बने होते हैं, क्वेश्चन सेम होते हैं, बट द ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस आर टॉगल्ड, ठीक है। तो अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो क्वेश्चन का
किसी बच्चे के पास कोई क्वेश्चन का सीक्वेंस जाएगा, किसी के पास कोई जाएगा, रैंडमली सेलेक्ट करके वो भेज देता। बट इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, इफ यू आर यूजिंग एन इमेज फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस देन डू नॉट शफल ऑर्डर क्वेश्चन, बिकॉज किसी एक इमेज को देख करके अगर आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और अगर आपने शफल ऑर्डर कर दिया तो होगा क्या कि आप इमेज कहीं होगी, क्वेश्चन कोई और होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में बच्चे जो है वो परेशान हो जाएंगे। तो प्लीज डू नॉट शफल ऑर्डर क्वेश्चन ऑर्डर इफ यू आर यूजिंग अ पिक्टोरियल questions. Quizzes, actually we are working on the quiz, so make this as a quiz. ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली सेव है, देन यू नीड टू सेव इट। ठीक है, सेव करने के बाद में एक जो ऑप्शन बच गया है जो मुझे अभी डिस्कस करना है, दैट इज इंपोर्ट क्वेश्चन। देखिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप थिंग। इंपोर्ट क्वेश्चन आपने कहीं पहले कोई वर्कशीट बना रखी है, सॉरी गूगल ये बनाया हुआ है, फॉर्म बनाया हुआ है, ठीक है, एंड यू वांट टू इंपोर्ट द क्वेश्चन ऑफ दोस गूगल फॉर्म ओवर देयर, देन व्हाट विल यू डू? आप लोग क्या करेंगे, आप उस गूगल फॉर्म आप यहाँ पर इंपोर्ट क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको आपकी ड्राइव पे लेके जाएगा जहां पर वो गूगल फॉर्म्स की सारी लिस्ट पड़ी होती है। वहां से वो आपसे कहेगा आपको कौन सा गूगल फॉर्म चाहिए, मुझे ये एडिशन वाला चाहिए, सेलेक्ट किया, व्हेन यू सेलेक्ट तो वो दिखाएगा आपको कि दीज मेनी क्वेश्चंस आर देयर और उनके ये आंसर्स हैं, आपको अब इनमें से कौन कौन से चाहिए। तो मुझे सारे चाहिए, मैंने सेलेक्ट ऑल किया। If you want to go for the selected questions, then you can go for that only. मुझे सारे चाहिए और import question, जैसे import किया मैंने, ठीक है, वो देखिए टोटल 2 out of 5 सेक्शन हो गए और वो सारे क्वेश्चन इसके नीचे ऐड होते चले गए। ठीक है जी, ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन मेक अ गूगल फॉर्म। अब इसको सीधा बंद कर देना, कहीं पे किसी को कुछ भेजने की जरूरत नहीं है। बट वी विल डू, क्लासरूम में जाएंगे, टेस्ट लिखा, ये लिखा, अगेन ये सब चीजें आप डिफाइन करेंगे। ये टेस्ट जो है मेरा 20 मार्क्स का है, लेट इट बी 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स की है, ड्यू डेट दे दी मैंने। ठीक है, जो भी डेट आपको डिफाइन करनी है उस डेट तक आपको बच्चे को दे दिया। देन मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बनाई थी टेस्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रूब्रिक्स आप डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, रूब्रिक्स डिफाइन कीजिए एंड whenever you need to assign it, ठीक है, और आप इसको यहाँ से असाइन कर दीजिए। जैसे ही आप इसे असाइन करेंगे बच्चों के पास ये चला जाएगा। ओके, so this is how we can go for the test quiz assignment. Now reuse post, जो इसका नेक्स्ट ऑप्शन है लास्ट। रीयूज पोस्ट में क्या है कि आप कोई दूसरा पोस्ट यूज करना चाहते हैं, देखिए इस क्लास का या किसी दूसरी क्लास का जो पोस्ट है उसको दोबारा भेजना चाहते हैं तो आप रीयूज पोस्ट करके, ठीक है, उसको दोबारा भेज सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, या तो यहाँ पे पोस्ट है नहीं, लेट इट बी। ठीक है, आप अगर किसी पोस्ट को दोबारा यूज करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करके किसी भी पोस्ट को दोबारा भेज सकते हैं। नाउ पढ़ाते वक्त अगर आपको प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चन देना है बच्चों से, देन यू विल गो फॉर क्वेश्चन। ठीक है, देन यू विल गो फॉर द प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, तब आप प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चन पे जाएंगे, प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चन पे जाकर के क्लिक करेंगे और यहाँ पर कोई भी एक क्वेश्चन रैंडमली सेलेक्ट करेंगे, शॉर्ट आंसर की जगह मल्टीपल चॉइस करेंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट करेंगे, इंस्ट्रक्शन पे जाएंगे और अपना क्वेश्चन लिख करके इसको डिफाइन कर देंगे। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ लेंगे इमीडिएटली। दिस कैन आल्सो बी यूज्ड, मैं दोबारा बताऊंगा उस चीज को अभी। ठीक है, तो एट रैंडमली अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं बच्चे से ड्यूरिंग द क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो आप इस क्वेश्चन को पुट अप कीजिए। एक सिंगल क्वेश्चन आप जैसे पूछेंगे उसकी स्क्रीन पे पहुंच जाएगा ये क्वेश्चन और उसको इमीडिएटली इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा।
ठीक है. So these are the classworks these are the type of the classworks that we can give to our students. ठीक है. And these are the type of the classes that we can give to our students और हम उनको इससे पढ़ा सकते हैं. बट अब देखते हैं, हम यहाँ पे इन तीनों की बात कर रहे थे. ठीक है. मीट, कैलेंडर एंड क्लास ड्राइव फोल्डर. जैसे मैं क्लास ड्राइव फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे को मेरी गूगल ड्राइव पे लेकर जाएगा और मैं पहले क्लासरूम के ऊपर क्लिक करता हूँ. यहाँ पे हर क्लास के लिए एक सेपरेट फोल्डर बना हुआ है. ओके. तो आज जो हमने क्लास बनाया है वो ये वाला बनाया है. मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मैंने जितना भी मटेरियल पोस्ट किया, आई एम क्लिकिंग ऑन इट, मैंने जितना भी मटेरियल आज बनाया वो यहाँ पे इसके अंदर सेव्ड हो गया है. ठीक है. स्केलेटन, टेम्पलेट और ये अलग 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 अलग. ठीक. ये सब इसलिए अलग अलग दिखा रहा है. देखिए, जो मैंने स्केलेटन अलग अलग दिखा रहा है क्योंकि मैंने वहां पे जब सेव किया उस समय मैंने वो नहीं किया, उनको क्या बोलते हैं, उसके टॉपिक्स को डिफाइन नहीं किया. अदरवाइज वो अपने अपने फोल्डर्स में जाता. ठीक है. ये टेम्पलेट्स है. तो सिंपली बेसिकली क्या है, वो अब आपको इस क्लास का सारा सामान इसी क्लास के गूगल ड्राइव के फोल्डर में मिल जाएगा. सो यू कैन यूज इट फ्रॉम हियर. नाउ गूगल कैलेंडर. गूगल कैलेंडर को यूज करने का जो कंसेप्ट है वो ये है कि गूगल कैलेंडर हम तब यूज करेंगे जब हम मीटिंग्स डिफाइन करेंगे. देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी और यू और टू एनीवन टू रिमेम्बर कि आज मेरी इसकी क्लास है, कल मेरी उसकी क्लास है, परसों उसकी क्लास है. ठीक है. हमें टाइम टेबल मिलता है, हम टाइम टेबल के अनुसार चलते हैं. सो व्हाट आई विल डू इज, मैं मंडे को बैठा, संडे को बैठा, संडे को मैंने गूगल कैलेंडर खोला. गूगल कैलेंडर खोल करके मैंने गूगल कैलेंडर खोला और संडे को बैठ करके मैंने, मान लीजिए मैं 21st को संडे को बैठा था. उसके बाद मुझे 22nd से क्लासेस अलॉट करनी थी. 22nd को 10 बजे मेरी एक क्लास है. ठीक है. 10 बजे जो मेरी क्लास है, 10 से 11:30, मैं टाइम कम कर सकता हूँ यहाँ पे. 11 बजे नहीं, 45 मिनट्स की क्लास है मेरी. तो मैंने 10 से 10:45 की क्लास ले ली. ठीक है. अगर केवी के बाहर का कुछ है, ठीक है, अगर केवी के बाहर का कुछ है, कोई गेस्ट वगैरह आप बुलाना चाहते हैं तो उनका मेल आईडी आप यहाँ पे लिख दीजिए. अगर आपको केवी के ही सारे लेने हैं तो उसको लेट इट बी राइट इट ओवर हियर. ठीक है. एंड आप यहाँ पे क्लास मेंशन कर दीजिए, आप किसके साथ में वो क्लास लेना चाहते हैं. सो माय क्लास शुड बी विद दिस क्लास. ठीक है. मैं ये नहीं लिख रहा. ठीक है. एंड सेव. ठीक है. जैसे ही अब आप इसको क्लिक कीजिए दोबारा, एडिट पे जाएंगे, नोटिफिकेशन पे जाएंगे. बाय डिफॉल्ट नोटिफिकेशन 10 मिनट बिफोर सेव्ड है. 10 बजे की क्लास थी. ठीक है. 10 बजे की क्लास थी. 9:50 पे नोटिफिकेशन जो है वो सबके पास चला जाएगा, उस क्लास के सारे मेंबर्स के पास में कि 10 बजे से क्लास है. जस्ट दे नीड टू गो टू द क्लास रूम फोल्डर और गूगल मीट लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे. गूगल मीट लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और and they can join the class. So this is a basic or general specific use of Google Calendar. अब ये एक क्लास डिफाइन हो गई, 11 बजे से दूसरी क्लास डिफाइन कर दो. ठीक है. जो दूसरी क्लास के साथ है. ठीक है. ये सारी इसको चेंज कर दीजिए. ठीक है. So similarly, I can go for n number of classes. यहाँ पे मैं इस तरीके से डिफाइन करके सेव करता चला जाऊंगा. So this is the main use of Google Calendar. आप जो भी काम दे रहे हैं, यहाँ पे जो भी ड्यू डेट्स दे रहे हैं, वो सब कैलेंडर पे ऑटोमेटिकली स्टोर होती चली जाएंगी और वो आपको रिमाइंडर भेजता चला जाएगा थ्रू मेल. ठीक है. गूगल मीट पे हम थोड़ी देर में आएंगे, बट बिफोर गोइंग टू मीट आई वुड लाइक टू हैव योर रिस्पॉन्सेज कि आपको जितना मैंने अभी तक बताया वो समझ में आया. काइंडली रिस्पॉन्ड टू मी. मैंने अभी तक जो बताया वो समझ में आया. हाउ टू मेक क्लास के अंदर काम कैसे देना है, प्लीज बताइए. ठीक
ठीक है, थैंक यू सविता मैडम, थैंक यू, Yes. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्टार्टेड? यशवंत जी, आपने क्या प्रश्न पूछा है, मैं उसका मतलब नहीं समझ में आया। स्टार्ड, ओके, स्टार्ड क्वेश्चन। देखिए, व्हाट इज द यूज ऑफ स्टार्ड क्वेश्चन? स्टार्ड क्वेश्चन ये है कि आप किसी को मैंडेट कर देते हैं, नहीं जी ये काम तो करना ही करना है, ठीक है। आप स्टार क्वेश्चन देंगे तो आपको ये हो जाएगा कि नहीं, बच्चे को ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही करना है, ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ, ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ना, एक मिनट, मैं ये जानना चाहता हूँ बच्चे को कि बच्चे को कितना आता है, कितना नहीं आता है, ठीक है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ बच्चे को कितना आता है, कितना नहीं आता है, तो उस कंडीशन में जो है मेरे को स्टार क्वेश्चन को स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एम आई क्लियर? ठीक है यश, आगे चलते हैं। अब मैंने बच्चों से काम करवा लिया, सब हो गया। अब बच्चों की कॉपी चेक करनी है ना। तो कॉपी चेक करने का प्रोसीजर क्या है, ठीक है, वो देखते हैं जरा। देखिए, हम यहाँ पे, मैं पहले एक क्लास दूसरी सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक क्लास दूसरी सेलेक्ट करता हूँ जहाँ पे कॉपीज, और जैसे अब ये वाला जो क्लास है इसमें तो अभी काम हुआ नहीं है, यहाँ पे तो मेरे पास कॉपियां आई ही नहीं है। सो आई गो टू अनदर क्लास जहाँ पे मेरे पास कॉपियां बच्चों ने भेजी हुई हैं। आई क्लिक ऑन इट, देन आई क्लिक बच्चे के ऊपर। देखिए, हाँ, यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है। आप पहले उस काम पे जाइए जो काम आपको चेक करना है, क्लिक ऑन दैट वर्क, आपको ये इंटरफेस मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे वो आप लेफ्ट हैंड साइड में आपके सारे स्टूडेंट्स का नाम पता दिया होगा, ठीक है, उनकी सबकी डिटेल दी हुई होगी। लाइक चिराग, देवेश, इन दोनों बच्चों की कॉपियां अभी तक चेक नहीं हुई हैं, बट यहाँ पे दिखा रहा है टू टर्न इन, ये दोनों वही बच्चे हैं जो टर्न इन हो रखे हैं अभी। 73 असाइन, ये जो असाइन है नीचे वाले हैं, यहाँ से नीचे, यानी ये वो बच्चे हैं जिन्होंने असाइनमेंट देख तो लिया बट उन्होंने सबमिशन नहीं किया करने के बाद में। ये 2 ग्रेडेड बच्चे हैं, ये 2 ग्रेडेड बच्चे वो हैं जिनकी कॉपियां मैंने चेक करके रिटर्न कर दी है। नाउ व्हाट टू डू, ठीक है, आप यहाँ से क्लिक कीजिए, यहाँ से क्लिक कीजिए, दोनों में से ऑप्शन खुला हुआ है। आप लाइक देवेश यादव, ये बच्चा जो है इसने सिर्फ खाली कॉपी मेरे को वापस दे दी है, यानी इसने विदाउट अटैचमेंट टर्न इन करके मेरे को असाइनमेंट भेज दिया है, तो मैं तो इसको कॉपी तो चेक कर ही नहीं सकता इसकी। मैं चिराग के ऊपर क्लिक करता हूँ, चिराग ने मेरे को जो जो पेजेस भेजे, ठीक है, अब मुझे वो पेजेस खोलने हैं। नाउ लुक, मेरे को मैंने एक पेज ये खोला, एज आई क्लिक ऑन द पेज, वो पेज यहाँ खुल जाएगा। दिस इज हाउ टू चेक और हाउ टू गिव द कमेंट्स ऑन यूजिंग लैपटॉप और iPad, like sorry not iPad, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप, ठीक है। iPads में एंड फोन में कॉपी कर चेक करना बहुत आसान है, ठीक है। दैट आई विल टेल यू आफ्टर दिस सेशन, इस सेशन को खत्म करने के बाद में, ठीक है। जिन जिन को इंटरेस्टेड होगा मैं उनको अपने फोन से कनेक्ट करके दिखा दूंगा, ठीक है। करना क्या है, क्लिक किया इमेज के ऊपर, इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद में यू जस्ट गो थ्रू द बुकलेट, क्वेश्चन के ऊपर चेक करना है, ठीक है। आपने जो जो चीजें दी थी, आपने जो जो क्वेश्चन पूछे, अगर वो सही है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप यहाँ से ऐड अ कमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और आप बच्चे का वो पर्टिकुलर पोर्शन सेलेक्ट करेंगे जो गलत है। उसके ऊपर सेलेक्ट करने के बाद में आप वहां पे लिखेंगे नॉट करेक्ट या फिर, ठीक है, जो भी आपको कमेंट देना है वो कमेंट देंगे। कमेंट देने के बाद में आप इसी तरीके से आप पहले सारे पेजेस चेक कर लेंगे, जितने भी पेजेस आपको बच्चे ने भेजे हैं,
देन आफ्टर चेकिंग ऑल द पेजेस आपको मैनुअली जो ग्रेड उसको देना है वो दे दीजिए। देखिए, जब आप असाइनमेंट दे रहे हैं तो दो तरह का असाइनमेंट मैंने आपको पहले ही बताया था। जब आप रूब्रिक्स डिफाइन करके देंगे, ये असाइनमेंट मैंने बहुत पहले दिया था, उस समय मैंने ग्रेडेड असाइनमेंट नहीं दिया था बच्चों को, बट हाँ मार्क्स अलॉट करके दे दिए थे। रूब्रिक्स वगैरह का कंसेप्ट उस समय इंट्रोड्यूस नहीं था इस प्लेटफॉर्म पे। तो मैंने अब मार्क्स तो फिर भी देने हैं, तो मैंने सारे पेजेस चेक कर दिए। सारे पेजेस चेक करने के बाद में मैंने उसको यहाँ पे मार्क्स दे दिए। मार्क्स देने के बाद में फिर मैं उसकी कॉपी को रिटर्न करूंगा। एज आई क्लिक ऑन द रिटर्न बटन, ठीक है, ये कॉपी विद दीज कमेंट्स विल बी रिटर्न टू द चाइल्ड। और बच्चा जो है इन कॉपियों को देख करके अंदाजा लगा लेगा, इन पेजेस को देख करके, कि मेरी क्या सिचुएशन है, यानी मैं मेरी कॉपी में क्या क्या मिस्टेक्स थी। So this is how we need to go for the correction of the notebooks. Now, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप दे सकते हैं, यहाँ पे मार्क्स दे सकते हैं, आप इंडिविजुअल प्राइवेट कमेंट्स भी दे सकते हैं। ये सब करने के बाद में आप यहाँ पे आए, अगर आपको लगता है फिर भी आपने मार्क्स चेंज करने हैं रैंडमली, आप यहाँ से भी रैंडमली मार्क्स चेंज कर सकते हैं और यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। सो द ऑप्शंस आर scattered everywhere. Just you need to go for the best convenience according to you. आपकी अपनी according best के लिए आपको ढूंढना है, ठीक है। So this is how we need to go for the copy correction. Now comes to attendance. देखिए, आप क्लास भी ले लिया आपने, सब काम हो गया, बट अब आप अटेंडेंस नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। नहीं, अटेंडेंस लेना बहुत जरूरी है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि भाई हमें अटेंडेंस कैसे लेंगे। हम एक मीट में बैठे हुए हैं, हम क्लास लिए हैं, तो हम बच्चों को हमें कैसे पता लगेगा कौन कौन से बच्चे आए हुए हैं, कौन कौन से बच्चे नहीं आए हुए हैं। सो फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू इज, आप एक काम करें, जब भी आप ये जो प्रोसीजर है, दिस प्रोसीजर इज फॉर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप, नॉट फॉर फोन एंड आईफोन्स, ठीक है। फोन और आईपैड के लिए ये प्रोसीजर काम नहीं करेगा। आप लैपटॉप में कैसे लेंगे वो आपको बता देते हैं। एक नया टैब खोलिए, उस नए टैब पे जाकर के आपको लिखना है गूगल क्रोम एक्सटेंशन। गूगल क्रोम एक्सटेंशन में जाएंगे तो आपको ढूंढना है गूगल वेब स्टोर, आएगा आपके पास में, आपको उस पर क्लिक करना है, ठीक है। वो गूगल वेब स्टोर पे जाने के बाद में जो सर्च बार स्टोर आएगा, वहां पर आपको लिखना है गूगल मीट अटेंडेंस। गूगल मीट अटेंडेंस पे आपको क्लिक करेंगे। जब आप गूगल मीट अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 1 2 3 मीट अटेंडेंस करके फॉर्मेट आएंगे। आपको सबसे ऊपर वाला गूगल मीट अटेंडेंस जो है उसको चूज करना है। एज आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, तो यहाँ पर रेटेड आ रहा है, अदरवाइज आप वहां पे लिखा था ऐड टू क्रोम, और आप उस ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे, एक ये हरा रंग का साइन यहाँ आ जाएगा, इस वाला जो आपको गूगल मीट अटेंडेंस दिखाएगा, ठीक है। इंस्टॉल होते ही यहाँ पे ये दिखाना शुरू कर देगा। अब ये काम कैसे करेगा मैं आपको ये दिखा देता हूँ। जैसे ही आप कोई गूगल मीट शुरू करते हैं तो आपके सामने ये चीज, ये एक यहाँ पे राइट कॉलम नजर आएगा, ठीक है। एक ये लिस्ट बनी हुई नजर आएगी जिसके अंदर आपके सारे पार्टिसिपेंट्स के नाम लिखे हुए होंगे, ठीक है। अब आप जैसे ही क्लास शुरू होगी और क्लास खत्म होगी, हाँ, वो आपको सारे पार्टिसिपेंट के नाम, जिस समय ज्वाइन किया वो टाइम, और जिस समय एग्जिट कर रहे हैं वो टाइम, वो सब चीजें यहाँ पे दिखा देगा। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, एक यहाँ पर सेव का बटन है, सेव अटेंडेंस एज CSV फाइल, ठीक है। इस फाइल फॉर्मेट, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, एक फाइल यहाँ पे क्लास लिस्ट करके और आज की डेट डाल करके यहाँ पे सेव हो जाएगी। जब ये फाइल सेव हो जाए, इसका मतलब है कि आपकी अटेंडेंस जो है वो सिक्योर हो गई है, सेव हो गई है, देन यू कैन प्रोसीड फर्दर, ठीक है। और इस काम को आपको करना है एट द एंड ऑफ द सेशन। जब आप क्लास खत्म कर रहे हो उससे 2 मिनट 3 मिनट पहले आप यहाँ से सेव अटेंडेंस कर लेंगे। अब इसमें ना 2-3 चीजें हैं, टेक्निकल इश्यूज आएंगे हमेशा।
ठीक है, टीचर्स आते हैं, लीव करके चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर लीव हो जाते हैं, ठीक है। एंड ये इंटेंशनली नहीं होता है, ये अनइंटेंशनली होता है। अगर मान लीजिए आप फोन पे मीट पर हैं, ठीक है, आप फोन पर हैं, मीट पर हैं, मेरे से बात कर रहे हैं और कोई कॉल आ जाता है, तो मेरा मीट जो है वो एंड हो जाएगा, देन यू नीड टू लॉग इन अगेन। उस कंडीशन में ये आपको टाइम कंटिन्यूटी में नहीं दिखाएगा, ठीक है। उस कंडीशन में ये आपको कॉन्टिन्यूटी में नहीं दिखाएगा अगर आपने दोबारा मीट ज्वाइन करी तो बहुत सारे ये इश्यूज आएंगे, ठीक है। वी आर ट्राइंग टू रेक्टिफाई इट, ठीक है। सो दिस इज हाउ टू टेक द अटेंडेंस। बट अगर मान लीजिए आप गूगल मीट नहीं ज्वाइन, गूगल मीट अटेंडेंस नहीं लेते हैं, ठीक है, तो आप अटेंडेंस कैसे लेंगे? देखिए, उसका अटेंडेंस लेने का तरीका जो है वो बहुत आसान है। आप क्लास वर्क में जाइए, क्लास के बीच में कभी भी एक क्वेश्चन पोस्ट, क्लास के बीच में कभी भी एक क्रिएट करा, एक क्वेश्चन उठाया, ठीक है, और यहाँ पे लिखा अटेंडेंस कभी भी, ठीक है। देखिए, अब ये कभी भी हो सकता है। अब यू, इट इज नॉट अ टाइम बाउंडेड, बिकॉज ये अटेंडेंस जो है ये टाइम बाउंड नहीं है, ठीक है। 1 घंटे की क्लास है, किसी दिन मैंने 9 बजे ले ली, किसी दिन 9:15 बजे ले ली, किसी दिन 9:30 बजे ले ली, किसी दिन 9:45 ले ली, ठीक है। और 5 मिनट का टाइम डाला करो इसके बीच में क्वेश्चन अटेंडेंस लेने के लिए, ठीक है। शॉर्ट आंसर की जगह लिखना है मल्टीपल चॉइस, ठीक है। ऑप्शन 1 प्रेजेंट, प्रेजेंट डाला, नो पॉइंट्स, अनग्रेडेड किया इसको, ड्यू डेट टाइम, जैसे अब मेरे को आज की लेनी है तो मैं 5 मिनट का टाइम लेकर के इसको अलॉट कर दूंगा। आज मेरे पास 19 तारीख है, 19 पे डेट पे क्लिक किया, टाइम ऑप्शनल है, अभी 4:37 हुए हैं, ठीक है। 4:40 डाल देंगे यहाँ पे और अपना काम हो गया। अब 4:40 तक जो अटेंडेंस इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके मेरे को आंसर भेज देगा, ठीक है, वेरी गुड। नहीं भेजेगा तो उसकी मर्जी है, ठीक है। देन वी विल पुट एब्सेंट, ठीक है। एंड नो टॉपिक, टॉपिक क्यों नहीं, आज हम स्केलेटन पढ़ रहे हैं तो स्केलेटन टॉपिक डाल करके उसके अंदर हम यहाँ से क्रिएट करके, सॉरी, हम यहाँ से आस्क कर लेंगे सारे बच्चों से, ठीक है। बट एक क्वेश्चन आया है कि हाउ टू रीचेक द अटेंडेंस। देखिए, रीचेक करना जो है वो बेसिकली कंसेप्ट ये है कि आपने रीचेक करना है, यहाँ से आप एक बार क्लिक कर लीजिए, आपने CSV फाइल डाउनलोड कर ली। अब आप जिस समय आप CSV फाइल डाउनलोड कर रहे हैं उस समय आप यहाँ से शो एवरीवन, आप सारे पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट जो है, ठीक है, उसको भी कॉपी करके या स्नैपशॉट लेकर के एक बार ही रीचेक कर लीजिए कि ये लोग हैं आपके पास में, वो सारे लोग जो हैं आपके पास CSV फाइल में नाम दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। दिस इज द ओनली वे टू रीचेक इट। वंस एक बार ही रीचेक हो जाएगा तो हमेशा ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम वो गलत देगा हमें, ठीक है। तो आप इस तरीके से दोनों को टैली करके चेक कर सकते हैं कि आपकी जो अटेंडेंस है वो मैच कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। अटेंडेंस क्लियर हो गया, अटेंडेंस क्लियर हो गया, कॉपी करेक्शन क्लियर हो गया, प्लीज लेट मी नो। ओके, यस, ओके, यस, ठीक है, थैंक यू, ओके, थैंक यू, चलिए, अब जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है इसका, दैट इज मीट। देखिए, मीट मैं ऑलरेडी आपको ब्रीफ में तो बता ही चुका हूं, बट दिस इज अ मीट इंटरफेस। मीट पे कैसे काम जाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आपके पास में एक मीट आईडी आएगी कि दिस इज योर मीट आईडी, आपको इस मीट आईडी पे काम करना है, और आपको मीट आईडी पे काम करना है। आप उस मीट लिंक पे क्लिक करेंगे तो यू विल बी रीडायरेक्टेड टू दिस पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये तो तब है जब आपको एक आईडी ज्वाइन करनी हो या स्टार्ट करनी हो न्यू मीट, बट हम तो ऑलरेडी क्लास मीट में है ना, तो हम तो यहाँ से ज्वाइन करेंगे ही नहीं। हम कहाँ से ज्वाइन करेंगे? हम तो क्लास से ज्वाइन करेंगे। तो हम जाएंगे क्लास के फर्स्ट इंटरफेस के ऊपर, तो हम क्लास के फर्स्ट इंटरफेस पे चलते हैं।
हम क्लासरूम में पहुंचे, क्लास क्लिक किया, हमें तो यहाँ से ज्वाइन करनी है ना, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। जब हम इस पे क्लिक करेंगे देन डेफिनेटली ऑटोमेटिकली वी विल बी ज्वाइनिंग अ क्लास। ठीक है, तो अब मैं इसको तो बंद कर रहा हूँ, मैं अब आपको अपनी ही क्लास में समझाता हूँ करना क्या है। जैसे ही हम क्लास में आएंगे, देखिए अब मैं जो बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट भी है, बट यू डोंट प्लीज इस समय कोई बटन प्रेस नहीं कीजिएगा आप लोग, है ना, अदरवाइज मेरा जो रिकॉर्डिंग वगैरह या स्क्रीन प्रेजेंटेशन है वो गड़बड़ा जाएगा। ओके, दिस इज द फर्स्ट इंटरफेस दैट यू विल सी जब आप मीट पे पहुंचेंगे। ठीक है, यू कैन सी यहाँ पे कुछ लाइक ह्यूमन लोगो बना हुआ है, उस पर लिखा हुआ है शो एवरीवन। यहाँ पे सारे लोगों के नाम दिखाई दे रहे हैं आपको, जो जो इस समय करेंटली इस मीट को अटेंड कर रहे हैं। देन चैट बॉक्स भी है एक, जहाँ पे आप लोग मेरे क्वेश्चंस के रिप्लाई कर रहे हैं यस सर नो सर में। ठीक है, सो दिस इज द, ये आप बच्चों से बोलेंगे कि आप बच्चे जो हैं वो अपने माइक और कैमरा को बंद करके रखेंगे, बिकॉज इट क्रिएट्स अ डिस्टरबेंस, फर्स्ट थिंग, और अपना क्वेरीज को वो चैट बॉक्स से पूछेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, माइक को बंद करने के लिए, बच्चों को कुछ कंट्रोल शॉर्टकट होता है कंट्रोल डी, और कैमरे को बंद करने के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल ई। अच्छा, बंद करने के लिए और खोलने के लिए, दोनों के लिए एक ही कमांड काम करती है। ठीक है, कंट्रोल डी से माइक बंद भी हो जाएगा, माइक खुल भी जाएगा। नाउ अब चलते हैं इन 3 डॉट्स के ऊपर। ये 3 डॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं सेटिंग्स को। आप क्लिक कीजिए, ये सेटिंग्स नजर आएंगी आपको। जब आप इन सेटिंग्स पर देखेंगे तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है, ये स्टॉप रिकॉर्डिंग तब दिखाएगा जब आप ऑलरेडी रिकॉर्ड मोड पे होंगे, यानी आपकी जो मीटिंग है वो रिकॉर्ड हो रही होगी तब। ठीक है, जैसे ही आप स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे वो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, रिकॉर्डिंग कोई भी ऑन कर सकता है, कोई भी ऑफ कर सकता है, कोई भी बच्चा ऑन कर सकता है, कोई भी टीचर ऑन कर सकता है, कोई भी बच्चा ऑफ कर सकता है। बट जब भी रिकॉर्डिंग ऑन होगी ऑफ होगी, ठीक है, तो जो फाइल क्रिएट होगी वो फाइल क्लास का जो एडमिनिस्ट्रेटर है जिसने क्लास बनाई है उसकी गूगल ड्राइव पे जाकर के सेव होगी, याद रखिएगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी ने भी रिकॉर्डिंग ऑन करी, किसी ने भी रिकॉर्डिंग ऑफ करी, तो गूगल ड्राइव जो है इस्तेमाल होगी क्लास टीचर की। ठीक है, या जिसकी ने भी वो क्लासरूम क्रिएट किया है उसकी। सो स्टॉप रिकॉर्डिंग इस तरीके से करना है। बाकी जो मॉड्यूल्स हैं वो ज्यादा यूजफुल है नहीं। ठीक है, लेआउट काम करेगा नहीं, फुल स्क्रीन, टर्न ऑन, ये सब चीजें छोड़ दीजिए, इसको जरूरत नहीं है इनफैक्ट, है ना। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज प्रेजेंटेशन। मैं यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंटेशन में हूँ, मैं आपको अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। जब भी आप किसी बच्चे से कहेंगे बच्चे ने क्या काम किया है या वो क्या देखना, आप कुछ पर्टिकुलरली ऑन द स्पॉट देखना चाहते हैं, तो आप बच्चे को बोलिए अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करने के लिए, तो बच्चा अपनी स्क्रीन को प्रेजेंट करेगा यहाँ से। जब आप टर्न ऑन कैप्शन दिखाते हैं उसके बगल में एक ऑप्शन आता है यू आर प्रेजेंटिंग, तो वहां पे ना मैं तो अभी तो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ इसलिए यू आर प्रेजेंटिंग दिखा रहा है, अदरवाइज वहां लिखा हुआ आता है प्रेजेंट स्क्रीन। तो जो प्रेजेंट स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी स्क्रीन को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यू कैन आस्क योर चिल्ड्रन टू प्रेजेंट देयर स्क्रीन सो दैट यू कैन नो व्हाट दे आर डूइंग। नाउ टीचर का पूरा कंट्रोल होता है किसी भी बच्चे के ऊपर इस गूगल मीट के अंदर। समझते हैं कैसे। इस समय मैं आप को समझाता हूँ। ये आरती है, ठीक है, आरती मैडम जो है वो बहुत बदमाशी कर रही है अगर क्लास के अंदर, तो हम क्या करेंगे, आरती मैडम को यहाँ से हम माइनस साइन को क्लिक करके रिमूव कर देंगे। ठीक है, और जब जैसे ही हम उन्हें रिमूव करेंगे उनको ये पता लग जाएगा मेरे को तो मैडम ने क्लास से बाहर निकाल दिया। दो ही कैन अगेन और शी कैन अगेन ज्वाइन द मीटिंग, बट उसको एक बार ये तो पता लग जाएगा कि हाँ मेरे को मैडम ने बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब मान लीजिए आरती मैडम ना बार बार ही अपना माइक ऑन करके यस मैडम कर रहे हैं, ठीक है, ये यस सर कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, आरती मैम के माइक को हम बार यहीं से जैसे ही आरती मैम माइक ऑन करेंगे मैं यहाँ से माइक उनका ऑफ कर दूंगा। आरती मैम यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली स्विच ऑन योर माइक प्लीज। यस सर। ओके, थैंक यू मैम। देखिए जैसे ही मैम ने माइक ऑन किया, नाउ आई हैड अ
मेरे पास कंट्रोल है, मैं माइक यहाँ से म्यूट कर सकता हूँ, ठीक है, आई कैन म्यूट इट, बट अगेन कंस्ट्रेन इज देयर दैट मैं उनको दोबारा बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, मैं उनको दोबारा अनम्यूट नहीं कर सकता, मैं सिर्फ म्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। फिर मैं दोबारा उनसे पूछूंगा, नाउ यू से आरती मैडम, जब मैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगा देन शी विल ओपन हर माइक एंड शी विल रिस्पॉन्ड टू मी। सो दिस इज द प्रोसीजर, दिस इज द सिक्योरिटी कंट्रोल एंड दिस इज द कंट्रोल फीचर ऑफ गूगल मीट। नाउ पिन टू स्क्रीन। नाउ जैसे आप सब लोगों को मैंने कहा था पहले पिन टू मेरी स्क्रीन को पिन कर दीजिए, इसका मतलब है कि मैंने आपको रिक्वेस्ट किया कि आप मेरी स्क्रीन देखिए, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे ही कोई बोलता है, ठीक है, तो मेरी जो डिफॉल्ट स्क्रीन है, मैं जो स्क्रीन दिखा रहा हूं वो स्क्रीन हट जाएगी और जो बोल रहा है उसका स्क्रीन आ जाएगा। दिस इज द डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ दिस गूगल मीट। बट मैं चाहता हूं कि नहीं, मेरी प्रेजेंटेशन की स्क्रीन चलती रहे, ठीक है, बट साइड बाय साइड जो भी बोल रहा है वो भी बोलता रहे, बट मेरी प्रेजेंटेशन की स्क्रीन ना जाए। तो ऐसी कंडीशन के लिए मुझे स्क्रीन को पिन करना पड़ेगा। तो जो भी टीचर है, टीचर विल इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट टू काइंडली पिन द स्क्रीन सो दैट कि जो भी स्क्रीन जो है वो पिन, जो जो स्क्रीन पिन हो रही है वो स्क्रीन आपकी स्क्रीन पे यानी स्टूडेंट की स्क्रीन पे रहे और वो जाए ना, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू यूज द गूगल मीट, ठीक है। समटाइम्स इट हैपेंस कि भैया कभी कभी मीट लॉगिन नहीं हो पाती है ड्यू टू टेक्निकल रीजन। तो अगर आपको करंट मीटिंग की डिटेल्स चाहिए तो मीटिंग डिटेल्स पे क्लिक करिए और वो आपको यहाँ पे दिखा देगा कॉपी ज्वाइनिंग इंफॉर्मेशन, कॉपी ज्वाइन करके यू कैन सेंड इट टू दी टीचर। समझ में आया? Can we mute all the participant by single click? Lina Verma. No, we cannot. We cannot. Ishwant, is there any size limit of the image while uploading image of notebook? No, there is no such size limit given to us. Okay, but don't you worry about the size. Okay, ample of, there is no limit of the data size, no limit of the drive, यानी ऐसा नहीं है कि 15 GB की ही ड्राइव है, जितना मर्जी डाटा अपलोड किया जा सकता है, ठीक है। सो डोंट यू वरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आप पूछ भी सकते हैं, माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं प्लीज। If we play a video audio file while using presenting screen, can student listen the audio of the file? Yes sir, कर सकता है लिसन, बट वो यूट्यूब की वीडियो करेगा और जब स्क्रीन प्रेजेंट करेंगे तो होल स्क्रीन प्रेजेंट ना करने की जगह पे, ठीक है, एक टैब को प्रेजेंट करा जाता है, उस कंडीशन में करेगा। अगर आप फुल स्क्रीन को प्रेजेंट करेंगे तब वहां पे नहीं सुनाई देगा, ठीक है, तब वहां पर आपकी ऑडियो जाएगी, ठीक है। दिस इज अ कंस्ट्रेंट थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा, यशवंत जी, यशवंत जी मैं आपको दिखा भी दूंगा कि आपको कौन सी स्क्रीन प्रेजेंट करनी है फॉर प्रेजेंटिंग अ वीडियो, सो दैट द साउंड ऑफ दैट वीडियो शुड बी ऑडिबल टू द स्टूडेंट, ठीक है। काइंडली वेट फॉर दैट। एनी अनदर क्वेश्चन? ओके सर, एनी अनदर क्वेश्चन प्लीज। Sapna someone how to take attendance on phone? There is no provision of taking attendance on the phone, please. Thanks. Next question. For taking the attendance, you need to go for laptop or for desktop. Lina Verma, how to check the copies using mobile? Okay, I'm going to connect my phone to. ठीक है, अब आप मेरे से वॉइस के साथ में कनेक्टेड नहीं होंगे, आप मेरी सिर्फ इमेजेस को देख पाएंगे। आई एम कनेक्टिंग माई फोन टू माई लैपटॉप, ठीक है।
अंडरस्टूड? यहाँ तक समझ में आया? ओके, थैंक यू यशवंत जी। वेट अ मिनट। ओके, हाउ टू चेक अ नोटबुक यूजिंग फोन एंड आईपैड, समझ में आ गया? Am I clear to all of you? Okay. Thank you, Lena ma'am. Thank you. Any other queries from my part? I have almost completed all the concept. Can we log in with the same ID on the different devices at the same time? I am doing the very same thing, यशवंत sir. ठीक है, मैं अभी वही चीज कर रहा था। मैं अपने फोन पे और अपने लैपटॉप पे दोनों पे सेम आईडी से लॉग्ड इन था। ठीक है, नेक्स्ट। एनी अनदर क्वेश्चन? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। So shall we end the class? Please play video and audio at a time. Okay? हाँ, देखिए, जब आप प्रेजेंट करते हैं, you are presenting. I am stop presenting my screen. ठीक है? प्रेजेंट नाउ पे जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है, योर एंटायर स्क्रीन, अ विंडो एंड अ क्रोम टैब। सो ओनली अ क्रोम टैब। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं एक मिनट रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। प्लीज थोड़ा वेट कीजिए, मैं अभी आपके लिए वीडियो ऑन कर रहा हूँ। Now kindly Your heart is a pump. It's a muscular organ about the size of your fist and is located slightly left of center of your chest. Your heart is divided into the right and left side. The division protects oxygen-rich blood from mixing with oxygen-poor blood. आप सबको सुनाई दे रहा था? यशवंत सर, यशवंत सर, सुनाई दे रहा था? यस। सो दिस इज हाउ वी कैन गो फॉर दैट। ठीक है, आप ऑडियो के साथ में ऑडियो के साथ में आप अपनी वीडियोस को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, any more doubts? If you have, kindly ask me. गुरशरण जी कौर मैम, प्लीज एक मिनट, आपका क्या क्वेश्चन था? Where to download the Google Meet attendance app? मैम, Google Meet attendance app जो है वो आपके फोन में नहीं होगा, सिर्फ आईपैड में, सॉरी हाँ, लैपटॉप में और डेस्कटॉप में होगा। और गूगल मीट, मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ आपको। आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं तो आप कर पाएंगे। गूगल क्रोम एक्सटेंशन पे क्लिक कीजिए। गूगल क्रोम एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद गूगल वेब स्टोर पे जाना है। वेब स्टोर पे जाकर के आपको यहाँ पे गूगल सर्च करना है। ठीक है, गूगल क्रोम अटेंडेंस, सॉरी गूगल मीट अटेंडेंस, और जो फर्स्ट आइकन आएगा उसको इंस्टॉल करना है, तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होकर के यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी नीड टू अटेंड install the Google Meet attendance. Next, can we use our smartphone camera and a mic with desktop during classroom? हाँ, कर सकते हैं ना सर, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। Any another question? आप प्रेजेंट कर रहे हैं ना? अरे सर, कैसी बात है? देखिए, मैं आपको दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ फोन के साथ में। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे कैमरा ऑन करके प्रेजेंट करते हैं। हेलो, थैंक यू सर। वेलकम मैम। केवीएसपीजी की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आई एम शोइंग यू यशवंत सर हाउ टू यूज योर कैमरा। ठीक है, मैं अपने फोन
सर हिंदी का एक बार पुनः बता दीजिए सर, हिंदी विषय का। किसका सर? हिंदी विषय का सर बता रहे थे कि आप सर हिंदी की जो अध्यापक है वो ध्यान दें सर, मैं थोड़ा देर से ज्वाइन कर पाया। हाँ कोई बात नहीं सर, आप रिकॉर्डिंग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? बहुत आसान है, वहां पे फाइल में जाकर के गूगल डॉक्स में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? आप वीडियो देखेंगे तो आपको दोबारा समझ में आ जाएगा संतोष जी, ठीक है? ठीक है सर, धन्यवाद सर। हाँ जी, हाँ जी। देखिए यशवंत जी, मैं आपको दोबारा एक बार कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ, एक मिनट। कर दी है, ठीक है? नाउ यू कैन, अब आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है यशवंत जी? ठीक है, इस तरीके से आप मेरी आवाज भी सुन सकते हैं और मेरे कैमरे को भी देख सकते हैं। So shall I end with the presentation?